كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. تمام ممبرز کو، آنریبل ممبرز آف پی ایس سی ڈپارٹمنٹس آڈٹ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کے اسٹاف کو میں اس میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں. میٹنگ کا ایجنڈا ٹیک اپ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں ہاؤس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نیچے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں آئی تھنک ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے جی. آ جاتے ہیں آپ کا پتہ. سب سے پہلے تو میں بریفلی پرفارمنس آف پی ایس سی 3 پہ تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پی ایس سی 3 کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک 18 میٹنگز اس کمیٹی کی ہو چکی ہیں. ان 18 میں سے 5 ڈیز جو تھے وہ جنرل بریفنگ کے تھے اور 13 ڈیز ہم نے آڈٹ رپورٹس ٹیک اپ کی. ان 13 دنوں میں اس کمیٹی نے اب تک 476 آڈٹ پیراز کو اسٹڈی کیا. ان 476 پیراز کو اسٹڈی کرنے کے بعد پی ایس سی 3 نے 2.336 ارب روپے کی ریکوری کے ڈائریکشنز اب تک دیے ہیں، جس میں سے 1.3 ارب صوبائی خزانے میں جمع ہو چکا ہوا ہے. اسی طرح تقریباً 59 کیسز جو تقریباً 2 ارب روپے کے ہیں، ان کی انکوائریز ابھی سی ایم آئی ٹی اور ایس این جی اے ڈی کے اور ڈپارٹمنٹس کے پاس جاری ہیں. تو جو ان انکوائریز کی رپورٹس ہوں گی اس کی روشنی میں پھر پی ایس سی یا مزید ریکوریز آرڈر کرے گی یا پیرا سیٹل کرے گی. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے ایک پری پی ایس سی میٹنگ کنڈکٹ کی اس ہاؤس کی، یعنی کہ جس میں پی ایس سی کے ممبر شامل ہیں، جس میں کچھ ایشوز سامنے آئے اور وہ میں لے کرنا چاہوں گا ہاؤس کے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کمیٹی نے بڑی اور ہر ممبر نے بڑا انٹرسٹ لے کے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کمیٹی کی پروسیڈنگز میں حصہ لیا. آئی تھنک اس کمیٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے the way PSC used to work in the past اس پروسیس کو ریفارم کر کے اس میں ایفیشنسی لے کے آئے، اور یہ اسی ایفیشنسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ تعداد میں پیراز اور ریکوریز اتنے کم وقت میں آرڈر کی. لیکن کچھ ایشوز ہمارے سامنے نئے آئے ہیں، جن میں ایک ایشو یہ ہے and this is pertaining to the Auditor General of Pakistan's office. It is very unfortunate and very disturbing for us to hear from all quarters, which includes local governments, district health authorities, education authorities, that the audit officers have جو فیلڈ میں ہیں انہوں نے they have started taking
advantage or leverage over these field formations in the name of PSE3, جو کہ ہمارے لیے بڑی ایک پریشان کن بات ہے کہ یہاں پر جو کام آ رہا ہے، جو آڈٹ پیراز لگ رہے ہیں، اگر نیچے آڈٹ فارمیشنز اپنا ایمانداری سے کام نہیں کریں گے اور اس کمیٹی کا نام استعمال کر کے وہاں پہ پروسیس کو پلوٹ کریں گے تو پھر اٹ از اے ویری سیریس ایلیگیشن. سو وی ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو رائٹ ٹو دا AG Auditor General of Pakistan and bring this issue to light. اسی طرح اسی سے ریلیونٹ ایک چیز ڈسکس ہوئی غالباً پچھلی میٹنگ میں کہ ہمیں انکمبنسی کی بتائی جائے کہ انکمبنسی کا ڈیوریشن کیا ہے جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں آپ کے آفیسرز کام کر رہے ہیں. اس پر راجا شوکت بھٹی صاحب بھی کچھ ایڈ کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ انٹرنل آڈٹ کا پروسیس جو ہے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آڈٹ پیراز اوریجنیٹ نہ کریں. اس کے حوالے سے بھی بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں اس کمیٹی کی کہ اس انٹرنل آڈٹ کا سسٹم ان پلیس ہونے کے باوجود اتنی زیادہ آڈٹ پیراز اوریجنیٹ کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں سپلٹنگ کے اتنے بڑے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سو دس کمیٹی ول آلسو decide on how to proceed with on that front. یہ جو اکاؤنٹس کے ہوتے ہیں آفیسرز فائنانس ڈپارٹمنٹ کے. Lastly, I would like to acknowledge the presence of Deputy Commissioners in today's meeting, physical presence. And اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا ہے تو ایون جو چیف سیکرٹری اور CM لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ ہمارے ڈپٹی کمشنرز اپنے آفیسز میں تھرو ویڈیو لنک اٹینڈ کرتے ہیں. I have also spoken to Commissioner Gujranwala today, and we would from the next meeting onwards we will give the administrators and deputy commissioners the option to join this meeting via video link. Thank you for coming all the way to Lahore, and in case کوئی ایسا امپورٹنٹ میٹر ہو جہاں پہ آپ کی فزیکل پریزنس ریکوائرڈ ہوگی تو وی ول اونلی اسپیسیفکلی ریکویسٹ دیٹ آفیسر ٹو کائنڈلی کم ٹو لاہور. ہمارا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا, خاص طور پہ DC سیالکوٹ کے ساتھ. ان کا PSE میں آنے کی وجہ سے ہم بہت سارے ایشوز کو پرومپٹلی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہم نے ایڈریس کر لیا, اینڈ ہی واز ویری گریشیس کہ انہوں نے پرسنلی انٹرسٹ لے کے چیزوں کو ریزالو کیا. Now I would like to open the floor, but before that introductions کروا لیں. میرا نام احمد اقبال ہے. I am MPA from PP 54 Narowal and currently chairperson of PSE3. Raja Shaukat Aziz Bhatti, MPA PP 9 Gujarhanj. Khalid Varun, MPA PP 251 Bawalpur. Raja Sagir Aman, PP 7. احمد لغاری PP 291. عبدالعزیز خان دریشک PP 295 راجن پور. جی رانا محمد ارشد MPA PP 133 چیف ویب پنجاب اسمبلی. حمیدہ وحید الدین MPA W320 from منڈی بہاؤدین. ملک تنویر اسلم MPA PP 21 چکوال. سردار راشد طفیل PP 175 قصور. علی آصف بگا MPA PP 75 سرگودا. چودھری محمد طارق گجر PP 63 گجرانوالہ سٹی. شاہد عمران مارتھ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ. عبدالرزاق DC حافظ آباد. صفدر ورک ڈپٹی کمشنر گجرات. بارک اللہ خان اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ. سر محمد حسین رانا ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. میاں شفیق سر ڈائریکٹر آڈٹ. مسعود احمد ڈائریکٹر جنرل آڈٹ لوکل گورنمنٹس پنجاب نارتھ. سر عبدالسمد ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس ڈپارٹمنٹ.
تھینک یو جی. آنریبل ممبر جو شروع میں ایشوز آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے, اف اینی ون وڈ لائک ٹو ٹیک دا لیڈ آن دیٹ. بہت مہربانی جناب چیئرمین. میں نارتھ آڈٹ والے اگر بیٹھے ہیں یاد ہو تو ایک ایشو میں نے ملک رب نواز آڈٹ آفیسر راولپنڈی ڈویژن کے بارے میں سر ریز کیا تھا, اور اس میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے بھی تھے, انہوں نے شورٹی بھی دی تھی. اس کے باوجود آپ کی ڈائریکشن بھی تھی, ڈائریکشن باوجود یہ میرے پاس یہ آرڈر پڑا ہے سر دوبارہ اسی آدمی کو راولپنڈی ڈویژن میں اسی ٹیم کا ہیڈ بنا دیا آڈٹ کی وجہ سے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہاں کوئی خاص بات ہے اس ضلع میں, یا اس کے بغیر کوئی اور آفیسر ہے نہیں آڈٹ والوں کے پاس. اور پھر میری ایک گزارش ہے سر, کوئی بھی بل کوئی بھی چیک منظور ہونے پیمنٹ ہونے سے پہلے اگر وہاں پہ پری آڈٹ کا میکینزم موجود ہے اور وہ اسے کلیئر کرتا ہے تو پھر بعد میں جواب بھی پھر اسی پری آڈٹ والے کو دینا چاہیے. پھر ڈپارٹمنٹ کے سارے آفیسرز کو کس لیے لا کے لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور اگر انہیں لا کے لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر جس نے وہ آڈٹ والے نے اپروول دی ہے, جس اکاؤنٹ والے نے وہ پیمنٹ کی ہے, وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ شامل ہوتے اس جواب دہی میں, اور وہ بالکل وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اپنا وقت پاس کرنے کے بعد, یا جو کچھ بھی سلسلہ انہوں نے کلیئر کرنا ہوتا ہے وہ کر کے تو ڈپارٹمنٹ والوں کو آگے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اگر انہوں نے اسے کلیئر کیا ہے تو غلط ہے تو پھر وہ بھی اس غلطی میں شامل ہے, پھر انہیں بھی جواب دینا چاہیے. اور ہمیں اس میں یہ جتنا کام ہم نے کیا ہے اس ایک سال میں سر, اس میں آڈٹ والوں کا ایک عجیب سا روپ پڑ گیا محکموں پر. اور پہلے اگر کوئی ایک دفعہ کوئی سیٹلمنٹ ان کی ہوتی تھی, ابھی 4 دفعہ ہوتی ہے, اور ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں بلیک میل ہو رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم انہیں کسی مشکل مصیبت میں, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میکینزم بنے جس سے یہ جو کرپشن کی روٹ کاز ہے یہ ختم ہو سکے. اور اگر یہ اسی طرح چلنا ہے, ایک دروازہ بند کر کے 4 ہم نے اور کھول دینے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ کل ہم نے بھی جواب دینا ہے, اور اس معاملے کو اس کے لیے کوئی پراپر میکینزم چاہیے. اور یہ اس بات میں سمجھتا ہوں یہ بریچ آف پریویلیج ہے کمیٹی کا, جو انہوں نے دوبارہ اس بندے کے آرڈر کیے ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ میں بٹی صاحب سے رابطہ کروں گا اور ہم بیٹھ کے اسے سیٹل کریں گے, نہ کسی کا کوئی میسج آیا, نہ فون آیا, نہ کسی نے بات کی. میں سمجھتا ہوں جو یہ طریقہ کار ہے یہ تو اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل, بالکل بیریبل نہیں ہے. اور باقی باتیں تو بعد میں, پہلے اس بات پہ تو یہ فیصلہ کریں. سیکرٹری صاحب کے پاس منٹ ہوں گے, آپ نکلوا کے چیک کر لیں. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ روٹیشن ہونی چاہیے, یہ بار بار وہی آدمی اسی ڈویژن میں نہیں جانے چاہیے. جناب چیئرمین صاحب, رانا صاحب یہ اس پہ بتائیں کہ کیا انسٹرکشنز ہم نے پاس کی تھیں روٹیشن پر. سر اس میں پچھلے 3 ایئرس کی انکمبنسی کے آرڈر کیے تھے ہم نے پروونشل آڈٹ کو. پچھلے 3 ایئرس کی انکمبنسی آڈٹ آفیسرس کی کس ڈسٹرکٹ میں کون گیا ہے, ایک یہ لسٹ ہم نے ریکویسٹ کی تھی ڈائریکٹر جنرل پروونشل آڈٹ سے. دوسرا روٹیشن کے لیے بڑی کلیئر گائیڈ لائنس تھی کمیٹی کی طرف سے کہ جو روٹیشن فیلڈ آفیسرس کی ہونی چاہیے. لیکن سر یہ ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹر جنرل آڈٹ پروونشل ورک سے, ان کو بلانے کی کوئی ہے جو جواب دے سکتا ہے آڈٹ کی طرف سے اس پر. ود یور پرمیشن سر. سر یہ لاسٹ میٹنگ میں ہم لوگ بھی تھے سر, وہ ہمارے ڈپٹی آڈیٹر جنرل صاحب آئے تھے اور ورکس والے بھی ڈی جی تھے اس میں. تو یہ سر آڈٹ سائڈ سے انہوں نے کمٹ کیا تھا اور یہ چیز انہیں اپنے اینڈ پہ انشور کرنا تھی. ہم یہاں پہ اب اس صورتحال میں کچھ میں کہہ نہیں سکتا. آئی ایم ہیڈنگ مائی ڈپارٹمنٹ, اور ہم لوگ کوئی کراس اس طرح سے اتھارٹیز ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس. چیئرمین صاحب میری اس میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ سر آپ لکھیں ان کو, یہ کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں, اور یہ جو بات انہوں نے رب نواز صاحب ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے, اس کو تو فوراً اس کمیٹی سے ہٹائے, کیونکہ وہ انہوں نے فون بھی کرنا تھا بھٹی صاحب کو شاید آڈیٹر صاحب نے. تو میری ریکمنڈیشن ہے سر جس کا بھی ان کو کمیٹی کی طرف سے لکھ کے بھیجیں کہ اس کمیٹی کو ڈیزالو کیا جائے اور نئی کمیٹی بنائی جائے, آل 3 آف دیم, اور ان کو کام کرنے سے روکا جائے. ادروائز وہ تو سر بدماشی کریں گے ادھر. سر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ
प्लीज़ आप करें। मैं समझता हूँ जो लगारी साहब ने बात की है इसमें ऐड करना चाहूँगा कि उन तीनों को तो रोक दिया जाए, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। कमेटी की एक वाज़ेह डायरेक्शन के बावजूद जिन लोगों ने वो कमेटी कंस्टिट्यूट की, ये नहायत ही ढिठाई का मुजाहरा है मेरा ख्याल है और हरदर्मी का मुजाहरा है। इस पर प्रॉपर एक्शन लेके इसको एक मिसाल बनाया जाना चाहिए कि उस डायरेक्शन को इग्नोर करके दोबारा इस तरह का वाहियात फैसला क्यों किया गया। जनाब चेयरमैन साहब, गुजारिश है कि यहाँ पे जितनी भी कोई बातें होती हैं और बताई जाती हैं वो बाई ओथ होती हैं गालबा, तो इनको मेरे ख्याल हर मीटिंग में बताना चाहिए कि आप ये जितनी यहाँ पे गुफ्तगू है वो बाई ओथ है, और अगर इसी तरह कमिटमेंट की थी और उसके बाद अगर ये वायलेशन हुई है तो ये मेरे ख्याल हमारे लिए किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। इस पे आप एक लीगल एक्शन लें। जनाब चेयरमैन, मैं भट्टी साहब की बात को आगे लेके, जैसे सरदार साहब ने मशरा दिया है और सरदार अहमद खान लगारी ने मशरा दिया है, हमारी ये फोरम जो है एक जुडिशली फोरम है और हम इस तरह का जो हमारा यहाँ से आर्डर जाता है और उस आर्डर की उबे ना हो तो ये कमेटी बनाने का या यहाँ पे पीएससी की मीटिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं है। और हमें इसको मिसाल बनाना चाहिए जो जिन लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की है, और इस पे आगे के लिए ये आपका जो है वो सिस्टम सीधा होगा और तमाम लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पे जो कमेटी की रूलिंग आती है उस पे अमल दरामद होना चाहिए। आई थिंक इस पे वो जो डीजी ऑडिट फरमा रहे हैं वो चूंकि सिर्फ नॉर्थ के ऑडिट से डील करते हैं, मेरा ख्याल है वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि इस पे जवाब दे सकें। जब ये इंस्ट्रक्शंस पास हुई थी तो काइंडली मुझे मिनट्स पास कीजिएगा जो भी उस मीटिंग के थे। जनाब चेयरमैन, उस वक्त हमारी मीटिंग में डिप्टी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान तारिक बशीर चट्ठा साहब, डिप्टी ऑडिटर जनरल सेंट्रल पंजाब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बात हुई थी और ये मिनट्स में सारी लिस्टेड है, इसलिए कल की मीटिंग में काइंडली डीजी को इनवाइट करें और इस पे उनसे कंप्लायंस रिपोर्ट मांगें। डीजी वर्क्स को भी बुला लें। जी राना साहब। जनाब चेयरमैन साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये गुजारिश करूँगा, जो आपकी एक साल की कारकर्दगी आपको और तमाम मेंबरान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी गुजारिश ये है कि जो शौकत भट्टी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, सर कोई भी मेंबर है काबिल एहतराम, जब एक डिसीजन होता है सर उस पर अमल होना चाहिए। और दूसरा सर ऑडिट वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन जब प्री ऑडिट का प्रोसीजर मौजूद है तो जब 6 महीने साल 2 साल बाद इशू रेज होता है तो सर फिर वो लायबिलिटी या जो क्रेडिबिलिटी है डिपार्टमेंट की उन पर भी आयद होनी चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी हो या ज़िला काउंसिल हो, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी करप्शन का वायरस है ज़रूर उस पर उसको टेकअप किया जाना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब, कुछ कंप्लेंट्स हमें आई हैं कि अब ऑडिट वाले जो हैं वो बार बार जो इधर फैसला होता है उनके पास ऑडिट के लिए जाते हैं और उस डिपार्टमेंट को, उस एमसी या ज़िला काउंसिल को अंडर प्रेशर किया हुआ है। तो इस पर भी प्लीज़ माय पॉइंट इज़ कि आप ज़रूर टेकअप करें, जहाँ पर कंप्लेंट है अगर वो डिपार्टमेंट के लोकल गवर्नमेंट की हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि ऑडिट वालों की किसी जगह पर कोई कंप्लेंट है तो उसको भी टेकअप करना चाहिए। थैंक यू। ये तो वही बात होगी जी कि ऑडिट का ऑडिट कौन करेगा। सर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, अगरचे के फैक्ट्स पे ही बात करूँगा सर। अगर आप देखें पिछले इतने अरसे में जो पीएसीज़ की मीटिंग हुई है, ऑर्डर ने कितने पैरे रिकमेंड किए हैं सेटलमेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर ऑडिट कमिटीज़ जो सर देख रही हैं पीएसीज़ की। हमारा रेट इतना नेग्लिजिबल है, इतने थोड़े पैरे हमने कहा है और हमने बिल्कुल उसको मेरिट पे चीज़ों को रखा है, फैक्ट्स पे रखा है। डेटा इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि हमारी तरफ से कोई सेटलमेंट रेट ऐसा रहा ही नहीं जिसे हम लोग सर किसी को कोई जिसे कहते हैं आप, हम लोग किसी को कोई एडवांटेज
ایڈوانٹیج دے سکیں, بینیفٹ دے سکیں, اور یہ سر ڈیٹے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سر اس چیز آپ نہیں, ہم آپ پہ الزام کوئی نہیں لگا رہے, ہم آپ کو صرف فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ جو ہمارے تک انفارمیشن آ رہی ہے دیٹ از ویری ٹربلنگ, بیکاز the information that we are receiving is that material paras are settled at a very different level, in a very different way, and I'm being very careful because this is all part of the record, and I'm not saying کہ کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہے یا کسی کو کوئی وہ نہیں کہہ رہے, but I think process, it is safe to say the process needs to be cleansed, اور اس کے لیے obviously this committee has taken up this issue in the chairpersons, council of chairpersons, and I think this problem is probably یہ کوئی PSC 3 کا ایشو نہیں ہے, تمام PSCs اس کو فیس کر رہی ہیں, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بات کر کے ہم PSC ایسوسیشن کا اجلاس بلاتے ہیں, بیکاز اگر آڈٹ کے اوپر اعتراض ہوگا تو پھر یہ پورا کام جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم بڑا وقت نکالتے ہیں, بڑی سیریسلی سارے دیکھیں نا, آج پوری کمیٹی ہاؤس کی آپ اٹینڈنس دیکھیں کتنی انٹرسٹ ہے ممبرس کا. اینی وے ویل موو آن ٹو دا نیکسٹ. یہ آپ کل ان سے منگوائیں جی انکمبنسی کی ڈیٹیلز, یہ جو کیس راجہ شوکت بھٹی صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے, اور ابھی انسٹرکشنز یہ دے دیں کہ فل فار یہ جو ٹور پروگرام آف فیلڈ ٹیم نمبر 4 مسٹر رب نواز, مسٹر محمد عمران, مسٹر رضوان احمد, اس کو فل فار جو ہے یہ آج آپ ان کو کمیونیکیٹ کر دیں کہ اس کو روکا جائے, کیونکہ اس پہ اعتراضات ہیں پہلے سے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آج کی میٹنگ کا ایجنڈا بریف کریں عدنان صاحب. آج کا فرسٹ ایجنڈا آئٹمس ہے سر جو ہم نے اکتوبر میں میٹنگ کی تھی اس کی کمپلائنس. اچھا, یہ 4 دن جو میٹنگ ہے ہماری, اس میں جو اگر ممبرس کو یاد ہوگا کہ ہم نے اکتوبر میں لوکل گورنمنٹ نارتھ اور لوکل گورنمنٹ ساؤتھ کے آڈٹ پیراز اسٹڈی کیے تھے, ان پہ ڈائریکشنز ایشو کی تھیں. اب ڈائریکشنز ایشو کرنے کے بعد آج کی میٹنگ کا مقصد ان پہ کمپلائنس رپورٹ لینا ہے کہ کیا ڈپارٹمنٹس نے ان پہ ایکشن لیا ہے, انکوائریز کے کیا نتیجے آئے ہیں جو ہم نے 30 دن یا 90 دن دیے تھے, اور اس حوالے سے میرے خیال میں آج نارتھ ہے اور کل بھی نارتھ ہے. جو عدنان صاحب آپ ایجنڈا یہ دیکھ کے بنایا کریں کہ ہمارے پاس ٹائم اور اسپیس کتنا ہے. اگر آپ بہت زیادہ ڈسٹرکٹس کو بلا لیں گے تو پھر دیکھیں نا, یہ بھی کمرہ فل ہے, باہر بھی ساری لابی فل ہے, لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو اتنا ایجنڈا رکھا کریں جتنا ایک دن میں ہم ریئلسٹکلی ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اب اس کو لیٹس فوکس آن دی ایجنڈا اینڈ ٹرائی ٹو کوئکلی فنش اٹ بفور 4:30 PM. آج لیفٹ اوور اجازت دے دیں کر لیں گے جو ڈسکس نہیں ہو پائے. نہیں, آپ کو لیفٹ اوور کو بلانا نہیں چاہیے تھا, آج ایک دن پورا کمپلائنس کا رکھنا چاہیے تھا. سو آئی ایم سوری جی, دس ول ناٹ ہیپن اگین, بٹ آل دوز ہو آر پریزنٹ ہیئر, جو سارے یہاں تشریف لے کے آئے ہیں کمپلائنس کے حوالے سے, وہ تو آج کی میٹنگ میں اٹینڈ کریں. لیکن اگر کوئی ایسے افسران آئے ہوئے ہیں جو کوئی لیفٹ اوور آڈٹ پیراز یا نیو بزنس کے لیے, تو آج ہم ریئلسٹکلی نیو بزنس ٹیک اپ نہیں کر سکیں گے. سو یو آر فری ٹو لیو, وی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ یو سٹنگ, اینڈ آئی اپولوجائز فار دس انکنوینئنس. دس شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ. بٹ سر یہ بھی ان کو آر وی ٹیکنگ دیز گائز اپ ٹمارو اور دے شوڈ گو بیک ٹو دیئر ڈسٹرکٹ. وی کانٹ ٹیک دیم اپ ٹمارو. یہ تو ہم 2 دن میں کر لیں گے. یہ ڈپینڈ نہیں, دیکھیں نا ہم بھی انسان ہیں. ہاں اتنا میٹنگس میں ہم 100 لے رہے تھے.
دیکھیں نا یہ وہ تو 100 پیراز ہم لے رہے تھے جب سملر نیچر کے پیراز تھے, کلب ہوئے ہوئے تھے, اب تو انڈیویجول پیراز ہیں. چلیں بسم اللہ کریں جی. ڈسٹرکٹ اٹک سے یہ بلو کاپی ہے جی. ہمارے پاس کن ڈسٹرکٹس کے ڈپٹی کمشنرز ان اٹینڈنس ہیں؟ گجرات, منڈی بہاؤدین اینڈ سر اٹک سے بھی اویلیبل. شیخوپورہ سر. شیخوپورہ اینڈ اٹک. حافظ آباد. چکوال کے ہیں بھی ڈی سی آئے ہیں جی. جی سر ڈی سی چکوال آلسو ہے. جی ڈی سی چکوال از ہیئر سر. ڈی سی چکوال از ہیئر. تو آل ڈی سیز آر ہیئر. تو پھر الفابیٹکلی چلتے ہیں جی, شروع کرتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کو یہ بتا رہے ہیں کمیونیکیٹ ہوا تھا کہ آج صرف کمپلائنس ہوگی, تو برائے مہربانی آپ بھی ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. آدھا پنجاب اس وقت بند پڑا ہوا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ لوگوں کو بلا لیا. چلیے جی آگے اٹک سے پھر شروع کریں جی. چلیں آڈٹ پلیز بریف کریں جی. اطلاعاً یہ جو سردار طفیل صاحب نے بات کی, راشد طفیل صاحب نے, جو نئے آنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ فورم ہے. یہ ایک کوازی جوڈیشل فورم ہے. اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے کورٹ آف لاء کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. سو یہاں پر ایوری ممبر, ایوری پارٹیسپینٹ, اینی ون ہو اوپنز دا مائک از اسپیکنگ انڈر اوتھ. So any perjury, any misrepresentation can have serious consequences. Isliye I would request everyone to be specific and do not make any assertions which cannot be backed by facts. Thank you. سر ایسا ہے کہ یہ کمپلائنس کی جو سٹیٹس ہے سر, یہ چونکہ ڈپارٹمنٹ نے بتانا ہے, انہوں نے اپنی ایک اس پہ رپورٹ بھی سر یہ ڈسپلے کی ہوئی ہے. تو میری سر ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس پہ اپنا کمپلائنس بتانا شروع کر دے سر, جن ایشوز پہ ان کا کیا سٹیٹس ہے سر. کیونکہ اس میں آڈٹ پیرا تو سر ابھی انوالو نہیں ہے, اس میں جو پہلے آپ کی طرف سے ڈائریکشنز آئی تھیں اسی کو ٹو کرنا تھا, اور ابھی انہوں نے اپنا پروگرس بتانا ہے سر ڈپارٹمنٹ نے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک اللہ خان اسپیشل سیکرٹری سر. سر فرسٹ پیرا جو ہے اوور پیمنٹ آف سوشل سیکورٹی بینیفٹس الاؤنس 1.901 ملین. اس میں سر یہ جو ہے اس میں ریکوریبل اماؤنٹ جو ہے سر وہ ریکور ہوگی ہوئی ہے 1.382 ملین, اور افیکٹڈ اور ویریفائڈ ہے سر, جو ڈائریکشن پی اے سی نے کی تھی سر. اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو سیٹل کیا جائے سر. آڈٹ نے بھی سر یہی میرا خیال ہے ریکمینڈ کیا ہوا سر. جی سر یہ باقاعدہ ہم نے سر ایس ٹی اے سی کی ہے, ایس ٹی اے سی کے ڈیسیجنس ہیں سر اس کے لاسٹ پہ سر کالم میں. آڈٹ ڈپارٹمنٹ دونوں ایک پیج پہ ہیں جی سر, ویریفائی کیا ہے سر. پیرا سیٹلڈ. نیکسٹ پیرا. Sir, next para is about inadmissible drawal of annual increment 1.212 million. اور یہ بھی سر اس میں سے ریکوری جو ہے 7,23,579 ہوگی ہوئی ہے سر. اور ایک اسپیشل کمیٹی ہم نے سر بنا دی ہوئی ہے, اس میں اس کی میٹنگ سر ہو رہی ہیں, تو اس کو بھی ابھی سر پینڈ کر دیا جائے گا. اچھا سیکرٹری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اوور پیمنٹ آف سوشل سیکورٹی بینیفٹ الاؤنس ہے سر, اس کو آپ نے کیا میجرز لیے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی مسٹیک نہ ہو؟ کوئی آپ نے کریکٹیو میجرز لیے ہیں؟ جی سر ہم نے اس دفعہ یہ کیا کہ تمام ایس ڈی اے سیز جو ہیں سر, ہماری 18 ایس ڈی اے سی سر اس دفعہ کنڈکٹ کیے ہم نے آپ کی میٹنگ کے بعد. اس میں جو ہے
स्पेशल सेक्रेटरी लेवल पर सर उसको चेयर किया गया. विच हैपेंड इन मतलब है कि मुल्तान में भी हुई, लाहौर में भी हुई सर, एंड इवन वी कंडक्टेड सम मीटिंग्स इन फैसलाबाद, रावलपिंडी, ये भी सर मीटिंग्स हुई. तो उसको हमने सीरियस इस लेवल पे लिया कि सर इसको तमाम जगह पे स्पेशल सेक्रेटरी ने चेयर किया सर. और अब इसमें इसकी रोशनी में सर हमने एक SOPs डिवाइस किए हैं जो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिए हुए हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी फॉरवर्ड किया, उनके कमेंट्स आ गए हैं. ऑडिट को नॉर्थ एंड साउथ दोनों को हमने सर फॉरवर्ड किए हैं. वो जैसे कंपाइल हो जाते हैं उसमें सर हम एक मैकेनिज्म हमने डिसाइड ये किया है कि तमाम CEOs बीइंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर दे विल कंडक्ट एक इंटरनल ऑडिट रिव्यू एवरी क्वार्टर. और उसमें ये होगा कि सर जो हमारे ये बेनिफिट्स जिस तरीके से ये कि कोई NPA ले रहा है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ले रहा है और एनी अदर काइंड ऑफ अलाउंसेस वो जो ले रहे होते हैं लोग अदर देन दैट आर एडमिसिबल, तो उनको वो हर 3 महीने बाद चेक करेंगे और एक सर्टिफिकेट देंगे कि देयर इज़ नथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन देयर DHA फॉर इन दिस रिगार्ड. तो वो सर हम इसकी मीटिंग्स जो है ना क्वार्टरली कंडक्ट करवानी शुरू कर रहे हैं सर. अभी भी ये इशू मैं आपको बता देता हूँ. हाल ही में मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर की तबाही मौत हो गई और तकरीबन 40 लाख रुपया के करीब उनकी सैलरी के अकाउंट में, यानी अकाउंट्स ऑफिसर ने उनकी सैलरी की डिस्बर्समेंट नहीं रोकी. तो इसके इन चीज़ों के लिए आपको डिपार्टमेंट वाइड चेक्स बैलेंसेस या सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जिनमें ह्यूमन डिस्क्रेशन ख़त्म हो जाए, जो ऑटोमेटेड हो. फिर ये आधे पैराज नहीं आएंगे. ये पैरा नंबर 13.4.2 को हम पेंड कर रहे हैं. इन पे इंस्ट्रक्शंस क्या थी पहले? सेकंड कॉलम में तो इसमें हमने एक प्रोब ऑर्डर किया. प्रोब रिकवर हो गया है, उतना सेटल कर दिया. प्रोब को टाइम कितना दिया था हमने? सर प्रोब के लिए हमने डिफरेंट कमेटीज़ बनाई थी सर, नॉर्थ एंड साउथ दोनों के लिए अलग-अलग, और एडिशनल सेक्रेटरीज वर हेडिंग सर. और उसमें हमने कुछ जो है कमेटीज़ जो हैं सर वो CMIT को भेजी थी रिपोर्ट्स, जिस तरह PSC ने कहा था. कुछ हमने SNGD की इंक्वायरी मेंबर इंक्वायरीज़ को भेजी थी सर. इस पे हमारी इंस्ट्रक्शन ये थी कि committee emphasized that such recurring lapses should not emanate consistently without complicity and negligence of the concerned authorities, and directed that responsibility should be fixed in all such recurring cases of overpayment contained in subject report. The committee further desired that a special committee comprising representatives from the administrative department, audit and finance department should consolidate all such cases and furnish recommendations for penal action against the incumbents to avoid such practices in the future. Sir, we have constituted that committee and 2 meetings. Where are the recommendations, sir? Sir, committee की मेरे पास सर मौजूद हैं. आपने भी कर ली है फाइनल recommendations जी? सर उसकी recommendation proposals उनका आ गया हमारे पास सर. ठीक है जी सर. तो आप कब फर्निश करेंगे ये सर? हमारे पास जो है ना इसको अभी ऑडिट को हम दिखा देंगे सर. ये मेरे पास आई हैं आप सर. इस हफ्ते 20 फरवरी को आई हैं सर मेरे पास. इस हफ्ते आप हमें दे देंगे ये रिपोर्ट? यस सर, मैं दे दूंगा सर. यस प्रॉपर, इट्स अवेलेबल सर. बट ऑल्सो रिकमेंड penal action और corrective action ताकि दोबारा ना हो इस तरह की. सर कर लेते सर. आगे चलिए जी. जितनी रिकवरी हो गई सर उतना रिड्यूस काइंडली कर दें जी. जितनी रिकवरी हो गई है उतना रिड्यूस कर दें. बाकी रिकवरी रिड्यूस कर दें जी. यस. आगे आ जाएं जी. 13.4.3 सर जैसे आएगी. नहीं सर 100% रिकवरी है. 100% होगी. 100% होगी सर. ठीक. कंप्लायंस तो 100% की बात करें. रिकवरी 100% होगी सर. 100% रिकवरी. CO हेल्थ अटैक सर डॉक्टर असद. ठीक 100% हो गई है. जी सर. चलें आगे आ जाएं जी. सर्टिफाई करवाएं इसको. 13.4.3 सर इसके लिए लॉस ड्यू टू अनऑथराइज्ड रिटेंशन ऑफ बैंड मेडिसिन 1.653 मिलियन. इसमें सर हमने प्रोब कंडक्ट करने के लिए कहा था. हमें रिकमेंडेशंस आई थी कि इसको सेटल कर दिया जाए, लेकिन हमने इसको दोबारा प्रोब करने के लिए उनको सर प्रोब की रिपोर्ट सबमिट करवा दी है. राइट ऑफ के लिए लिखा था ना उन्होंने. प्रोब पेंडिंग थी, वो पेंडिंग दोबारा सीन करवा के भिजवा दी. रिपोर्ट सर आ गई है, लेकिन यह है कि अभी इसको एनालाइज करना है सर. कब है ये? ये दवाई अभी तक स्टोर्स में ख़त्म हो गई है सर. सर ये तो ख़त्म हो गई थी, इसको तो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था एज पर रिकमेंडेशन सर. ठीक है.
सर सीओ ने इसको हमारे पास राइट ऑफ करने के लिए भेजा था, बट नो प्रोब वाज कंडक्टेड, तो हमने इसको प्रोब दोबारा करने के लिए कहा। आपको याद है जब ये मीटिंग्स चल रही थी तो इस मीटिंग ने बड़ा एतराज़ उठाया था कि इनकी SDAC जो है वो उन्हीं लोगों ने की हुई थी जिनके खिलाफ इल्ज़ामात थे, जिस वजह से रिकमेंडेशन सारी ये थी कि सारे पैसे सेटल कर दें। तो इसलिए फिर हमने इस पर इंस्ट्रक्शन ये दी थी, एडिशनल सेक्रेटरी Monitoring Finance Department recommended that write-off sanction of the loss was required in the subject case after probing the matter. The para was conditionally settled subject to write-off sanctioned by the competent authority. सर वो write-off की prerequisite है, probe हो गया। प्रोब हो गया जी? जी सर, प्रोब कंप्लीट करके भिजवा दिया डिपार्टमेंट को सर। प्रोब में क्या होता है? प्रोब का है सर, प्रोब में कमेटी बनाई गई थी, वो सारे फैक्ट्स को देख के उसकी रिपोर्ट बना के सबमिट कराते हैं सर डिपार्टमेंट को। हमें थोड़ा सा गाइड करें, जो कुछ मेंबर्स हैं जो पहली दफ़ा PSC का हिस्सा हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो वी वुड लाइक टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट कंप्लायंस मीटिंग, कि प्रोब आप कैसे कंडक्ट करते हैं और प्रोब जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी क्या कहाँ पे कौन डिसीजन लेता है, किसके पास जाता है, ज़रा हमें कमेटी को ब्रीफ भी कर दें। सर प्रोब इज़ रेफर टू द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को सर भेजी जाती है, उनको ये डायरेक्शन दी जाती है कि जो भी प्रोब करेंगे उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द DC ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के वो वहाँ पे ऑफिस मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी। वंस द प्रोब इज़ कंडक्टेड सर, तो इट रीचेज द डिपार्टमेंट। अगर उसमें पीनल एक्शन सबमिट हो, लाइक कुछ केसेस में आया हमारे पास, तो हम सर उसके ऊपर पीडा लगाते हैं, और अगर रिकवरी है उसके ऊपर भी हम पीडा लगाते हैं, और जो भी उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इफ इट इज़ ग्रेड 19 एंड अबव, तो समरी फॉर द CM इनिशिएट कर देते हैं कि कमेटी अप्रूव की जाए, जो उसको फिर प्रॉपर अंडर पीडा उसकी प्रोसीडिंग्स करेगा सर। एंड वॉट एवर इज द डिसीजन ऑफ द इंक्वायरी कमेटी अंडर पीडा, वो सर उसके मुताबिक फिर उसको सजा दी। इस केस में आपने कोई पीनल एक्शन लिया है कि बैंड दवाइयाँ कैसे आ गई हैं अस्पतालों में? सर वी हैव जस्ट रिसीव्ड, मतलब इन्होंने भेजी हमें 2 दिन पहले। May I say something sir please? सर डॉक्टर सर CEO हेल्थ अटैक जी प्लीज़। सर ये लास्ट टाइम आपके सामने प्रॉपरली डिस्कस हुआ था, ये एक मेडिसिन परचेज हुई थी सर, परचेज होने के बाद डिटेल क्लियर हुई सर, डिटेल क्लियर होने के बाद इसकी पेमेंट्स हो गई थी, फिर सर आफ्टर 3 to 4 मंथ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये मेडिसिन हैजर्डस हो गई थी और इसको बैन कर दिया गया था। जब ली थी तब बैन नहीं थी सर, तब बैन नहीं थी। ठीक है सर, इसके ऊपर सर प्रोब DC साहब फिर तो ये ऑडिट ने ज्यादती की है सर, ये लास्ट टाइम भी आपके यही कमेंट्स थे सर। ये बड़ी ज्यादती की है आपने। देखे ना, दिस इज समथिंग कि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि ड्रैप ने दवाई बैन की और उन्होंने अपनी इन्वेंट्री में जितनी वो दवाई रखी थी उसको ज़ाया कर दिया, आपने उस पर ऑडिट पैरा बना दिया। ये तो मजाक है, मतलब ऑनेस्टली। सर हमने ये पैरा नहीं बनाया कि इन्होंने ये परचेज़ किस लिए की। सर हमने कहा कि वो इनके पास जो मेडिसिन पड़ी थी, अगर आप पैरा देखें तो हमने कहा कि वो रिटर्न होनी चाहिए थी टाइमली, वो एक्सपायर हो गई। तो इस चीज़ के ऊपर सर हमने ये पैरा जो है। DG साहब, एक चीज़ जब बैन हो गई मार्केट में तो उसकी खरीदो फरोख्त पे पाबंदी लगा दी ड्रैप ने, उसके इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते तो फिर वो किसको बेचेंगे, ज़ाया करेंगे उसको। सर इन्होंने उससे क्लेम करना था सर, उससे पैसे लेने थे सर उससे, या उससे दूसरी मेडिसिन लेना थी सर। क्यों जी, ये क्या था? व्हाट वाज द प्रोटोकॉल फॉलोड बाय? सर अगर मेडिसिन की डिटेल क्लियर है, ड्रग टेस्टिंग लैब से वो मेडिसिन क्लियर है, कोई कंपनी की तरफ से हमने पेमेंट्स कर दी, पेमेंट होने के 2-2.5 माह के बाद 3 माह की कुछ यूटिलाइज भी हो गई। यूटिलाइज होने के बाद हमने बाकायदा कंपनी को सर अप्रोच किया था, बट दे सेड कि अवर मेडिसिन में तो कोई इशू नहीं था, ये तो ओवरऑल बैन हो गई है।
इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने दिया है ऑडिट वालों को? सर, जब आपने बिल्कुल। लेटर लिखा कंपनी को? जी सर, सारी चीज़ें मौजूद है सर, सारी सर अगर तो इन्होंने लेटर का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपको दिया है तो फिर तो कंपनी इज नॉट बाउंड टू टेक द मेडिसिन बैक एंड रिफंड द मनी ना? These are exactly the issues that we were alluding to at the beginning of this meeting, that we are beginning to lose confidence and trust over this process. सर ये अगर एक्सपायर भी हो गई थी सर तो इन्होंने राइट ऑफ तो करना था ना सर। हम तो ये बात कर रहे हैं कि इसको राइट ऑफ कर लेते, अब ये राइट ऑफ करके हमें इंक्वायरी रिपोर्ट दे दें तो सर हम इसको सेटल कर देते हैं सर। आप लोगों को भी ना जी, आप लोगों को भी एक थोड़ा सा अपने हाउस एंड ऑर्डर करने की ज़रूरत है। मे बी वी विल call a special meeting with audit only so that we can speak openly. Right now there are a lot of people in attendance. इसको ये भी देखते हैं चेयरमैन साहब, ये तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट में होगा जी। अगर मेडिसिन 3 महीने बाद बैन हो गई तो ये सेम टाइप का अगर हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता तो क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आया? That is a very good point raised by the honorable member. बाकी डिस्ट्रिक्ट बताएं, कोई डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के सीईओ बताएं कि आप लोगों ने क्या किया था इस केस में? सर डॉक्टर मोई सीईओ गुजरांवाला सर जी सर, कॉरेस्पॉन्डिंग सीईओ भी बैठे हुए हैं सर उस वक्त के यहाँ पर सर। ये रेनिटीडीन सर इशू नहीं हुई थी हमारे स्टोर से सर। कोई ऐसे सीईओ हैं जिनके पास थी मौजूद? परचेज थी आपके पास? में तो आ गई सर। सॉरी मेरे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है सर इस वक्त 2000। आप अपनी मेमोरी से कर सकते हैं यार? सर आई एम सॉरी आई वाजंट देयर इन दिस पोजीशन सर एट दैट टाइम। चेयरमैन साहब पॉइंट ये है कि जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है यही अभी लेट से चकवाल है, ये पैरा चकवाल में भी आना चाहिए था। ये बात क्या आया है या नहीं है? अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि ऑडिट वाले अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, कहीं डाल दिया कहीं नहीं डाला। This lack of uniformity by now is very obvious कि डिस्क्रेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे एक पैरा लग जाता है दूसरे ज़िले में नहीं लगता। This itself is an indicator of the quality of audit. उसमें स्टैंडर्ड्स नहीं डिफाइंड, उसमें सारे ऑडिट फॉर्मेशंस एक लेवल पे काम नहीं कर रही। सर अब इसमें इस स्टेज के ऊपर के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ने ये वाली मेडिसिन ली थी कि नहीं सर? ये एक्सक्लूसिव मेडिसिन बाज़ लोग लेते हैं सर, बाज़ नहीं लेते। अदनान साहब, just for the sake of addressing this curiosity of the house and to see also help the audit process, आप सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर को लिखें कि वो तमाम डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन मंगवाएं कि उस वक्त जब ड्रैप ने उसको इलीगल करार दिया था तो उस वक्त किस किस की इन्वेंट्री में ये दवाई कितनी मकदार में मौजूद थी एंड हाउ डिड दे डील विद इट। और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग देखें कि क्या एक ही ज़िले पे ऑडिट पैरा लगा है या सब पे लगा है या कोई ऐसी चीज़ थी जो बाकियों ने मुख्तलिफ की है अटक से, ताकि हमें पता चले। इससे ऑडिट को भी मदद होगी और इस कमेटी को भी तसल्ली मिलेगी। जनाब चेयरमैन साहब, इसमें ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि ड्रैप ने पाबंदी क्यों लगाई या पहले परमिशन क्यों दी। परमिशन थी तो उसकी परचेजिंग हुई और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई, और ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। इसकी बैकग्राउंड भी साथ में कि ड्रैप ने किस बेस पे इसकी पाबंदी लगाई थी। चलें जी अगले पैरे पे आ जाएं जी। इरेगुलर 13.4.4 irregular procurement of medicine exceeding repeat order limit 1.234 million। इसमें सारा प्रोब हो गया था और प्रोब में इंडिकेट ये हुआ है कि ये इसके खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी करनी है सर, तो अब रेगुलर इंक्वायरी इनिशिएट कर रहा है डिपार्टमेंट सर। The committee directed that an inquiry be conducted to ascertain the departmental stance on significant rise in rates of medicines and responsibility be fixed for violation of rules, if any. The para was kept pending.
सर इस पे प्रोब हो गया और मतलब है कि हमने रिकमेंड हुआ है कि वहाँ जो कंसर्न है लोग उनके खिलाफ पीडा इंक्वायरी की जाए सर। डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसकी अगर इनिशिएट प्रोब कर रहा हो गया है तो कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस में वो मेंशन क्यों नहीं है उसका आउटकम यहाँ? है सर। उस टाइम जब SDAC हुई है ना उस टाइम पे नहीं आया था, ये अंडर प्रोसेस था। कब कंप्लीट हुआ प्रोब? हमने तो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने का कहा था ना जी, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो गई है सर इसमें। Was there a time deadline for that? सर Did the committee give you a time deadline for that? जी सर, अपने अगली मीटिंग के जाने से पहले हमने करनी होती है सर ये। तो फिर वो भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए थी ना आपकी कंप्लायंस में। अभी आप एक चीज वर्बली यहाँ बता रहे हैं, that should have been mentioned over here. सर एक्सक्यूज मी, आप हर प्रोब रिपोर्ट के एंड में एक ही बात कर रहे हैं कि जो वो अभी रिसेंटली आई है तो हम मेंशन नहीं कर सके। एक आदमी तो समझ आती है, हर रिपोर्ट का यहाँ नाम मेंशन होना, दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने लिखा है सर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स आर अंडर प्रोसेस। नहीं सर, वो रिसीव हो गई अब हम 14.4 पे हैं जी। जी सर। 13.4 आप कुछ कहना चाहते हैं, अपना तारुफ कराएं प्लीज। जी सर, डॉक्टर इरफान एक्स MS DHQ अटैक सर। जी सर, आपकी इसमें डायरेक्शन थी कि इसमें प्रोव करना है स्टांस को कि मेडिसिन की जो वैल्यू है वो एक्सेसिवली एनहांस हुई कि नहीं, जबकि इस प्रोव के अंदर जो आंसर है उसमें कहीं पर भी इस चीज़ की डिटेल्स नहीं है कि ये प्रोव किया गया कि नहीं, ये स्टांस हमारा ट्रू था या नहीं। क्योंकि हमारा स्टांस था कि एक तो पेशेंट का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और दूसरा मेडिसिन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आप इंक्वायरी कमेटी के सामने जब पेश होंगे तो वहाँ पे काइंडली अपना स्टांस दीजिएगा। जी यहाँ पे सेक्रेटरी साहब आपने तो कहा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड वी आर गोइंग फॉर द पीडा। यस, एंड द करंट MS साहब कह रहे हैं अभी हमें मौका ही नहीं दिया गया। सर प्रोब जो जिनको हमने प्रोब दी थी AS वर्टिकल प्रोग्राम को सर हमने दिया था, उन्होंने जो प्रोब सबमिट की है उसके मुताबिक मतलब है कि उन्होंने इसमें इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए कहा। सर सॉरी टू से मैं स्पेशल सेक्रेटरी साहब के आंसर से सैटिस्फाइड नहीं हूं। पीडा फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिटी, पीडा इंक्वायरी का मतलब है कि आपने पीडा प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है सर अगेंस्ट द रिस्पांसिबल। यस सर, पहले वो लेकिन वो फिर सुनेंगे पीडा में, इनको अब सुनेंगे पीडा में सुनेंगे, अब पीडा में इनको सुनेंगे। पीडा में सर पीडा विल बी द फर्स्ट इंक्वायरी। इससे पहले कोई सर प्रोब हुआ इससे पहले ना, प्रोब में ये पता लगा कि लोगों की वाकई गलती है सर। अच्छा, प्रोब में आपने कर लिया गलती है। यस, विदाउट हिम से, विदाउट लिसनिंग टू हिम। क्या कह रहा है मैंने किया ही नहीं नहीं किया गया सर। बट मैं ऑनरेबल मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फोरम को हम उस लेवल पर ना लेके जाएं। ये एक हाईएस्ट फोरम है। जो चीज़ें पीडा की एक्ट के तहत इंक्वायरी में होनी है, हमें एतमाद है उस प्रोसेस पे कि वो एक फेयर प्रोसेस होगा। अगर ये उसमें अपनी इनोसेंस प्रूव कर लेंगे तो कोई पीडा कोई तलवार तो नहीं है जो चलनी है, वो तो तब चलनी है अगर आप उसमें साबित हो जाए आपका जुर्म। सो आई एम सेटिस्फाइड कि अगर डिपार्टमेंट ने पीडा तक ले गए, इसका मतलब है कि दे हैव टेकन आवर इंस्ट्रक्शन सीरियसली। चलें जी सर, अब आप ज़्यादा देर इसको लटकाइएगा मत। नहीं सर, वो ठीक है, अगर देखें कोई बेगुनाह है और उसके पास एक दलील है तो उसको प्लीज़ जल्दी एग्जोनरेट कर दें, या जो भी आप जो इसका भी एक कंप्लायंस, इसकी भी इन चीज़ों की भी एक कंप्लायंस रिपोर्ट तय कर लें कि 6 मंथ्स के बाद इसकी कोई कंप्लायंस कितनी है। पीडा एक्ट क्या कहता है सर? विदिन 60 डेज। जी विदिन 60 डेज। सर मैं अर्ज़ करूँ सर, इसमें बहुत सारी इंक्वायरीज सर ऐसी होती हैं जिसमें ऑफिसर्स होते हैं BS 19 के होते हैं सर, उनकी फिर इंक्वायरी के लिए CM चीफ मिनिस्टर को लिखना पड़ता है, वहाँ से सर वापस समरी आती है, फिर उसके बाद फिर वो इंक्वायरी भी असाइन होती है SNDAD के किसी ऑफिसर को सर, जो डिपार्टमेंट से नहीं होते। तो वो सर जनरली वो 6 महीने से ज़्यादा भी लग जाते हैं बाजू का सर, क्योंकि वो उनके पास ट्रांसफर्स अदर फैक्टर्स भी होते हैं सर। अच्छा तो सर पीडा की इंक्वायरी टाइम लेती है सर। आप इसको अगर आपने इनिशिएट कर दिया तो काइंडली अब इसको टाइम से कंक्लूड कीजिएगा। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस। सो सर बस एक
सबमिशन थी जी इधर बैठे सर आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट गोज ऑन एंड एवरीथिंग दैट कम्स टू माय नोटिस पर्सनली एटलीस्ट आई वांट टू गिव माय ओपिनियन सर मुलाजमीन के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि इफ़ यू आर इनोसेंट इवन एट सुप्रीम कोर्ट लेवल लेकिन सर पीडा प्रोसीडिंग से बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं किसी भी एम्प्लॉई के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें कि इनिशियल प्रोब के अंदर इफ़ आई एम द कंसर्न पर्सन तो एटलीस्ट मेरे से कम एक रिटन बयान तो लेना फ़र्ज़ है ना सो आई फील के पीडा से पहले अगर डॉक्टर साहब जो के उस वक्त के एमएस हैं अगर उनका मौक़िफ़ ही नहीं लिया गया बिकॉज पीडा डेफिनेटली वुड हैव इम्प्लिकेशंस फॉर हिज ACRs एंड एंटायर फ्यूचर पीडा की रिकमेंडेशन होना ही जो है वो छोटे मुलाजमीन के लिए इसकी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इम्प्लिकेशन है सर सो अगर प्रोब के अंदर डॉक्टर साहब से पूछा ही नहीं गया तो आई पर्सनली फील कि इट विल बी अनफेयर कि सेक्रेटरी साहब आप बताइए हाउस को कि आया प्रोब में क्या व्हाट वर द steps that were taken in the probe? Was the concerned officer given a chance before PIDA was ordered? Because PIDA आपने order की है, हमने order नहीं की. अभी सर पीडा ऑर्डर होना है प्रोब की रिकमेंडेशंस आई हैं विच हैज़ रिकमेंडेड कि इंक्वायरी इनिशिएट की जाए तो उस प्रोब में क्या इनका वर्जन सुना गया था सर मुझे रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है मैं इसको देख लेता हूँ सर आप प्रोब की रिपोर्ट सर सिंपल सी बात अगर नहीं सुना गया तो उनको सुन लें प्रोब की रिपोर्ट पे नहीं काशिद साहब इस फोरम को नीचे ना लेके जाएं बताएं सर ऑल CEOs were present before the what happens अगर पीडा होता है डिपार्टमेंट कैन जस्ट डू अ प्रोब एंड सेंड इट टू पीडा जो प्रोसेस क्या है वो बता दें हमें एंड देन विल मूव फॉरवर्ड सर प्रोब जो है ये एक्चुअली एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होती है कि हमने किसी के खिलाफ बात नहीं करनी हमने उस फैक्ट को देखना है कि हुआ क्या है उसमें जिसको सुनना है सुनना भी चाहिए अगर नहीं सुनना तो सामने ऑब्वियस है कोई चीज़ तो वाज़ेह है और फिर कंपल्शन नहीं है क्या जी जी बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग आप प्रोब की रिपोर्ट काइंडली मंगवा लें मैं सर मंगवा और हाउस को ब्रीफ कर दें ताकि सर मेरे पास मौजूद है सर जी अगर बताइए कहाँ पे सर तो उसमें तमाम CEOs आए थे मौजूद थे जिस दिन और इनको सुना गया है एस वर्टिकल प्रोग्राम ने सुना है 22 और 23 को 12-13 को सर 12-13 फरवरी को सर उन्होंने बाय नेम मतलब है कि ये रिकमेंडेशन सर हम 2 MSCs हैं दोनों को नहीं सुना गया सर इफ द हाउस इज नॉट सेटिस्फाइड मैं इसको रीप्रोब भी करवा सकता हूँ मतलब है कि विद इन 3 to 5 days सेक्रेटरी साहब these are the kind of things that should not happen in this committee yes कि आपके डिपार्टमेंट के लोग आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो या डिपार्टमेंट ऑडिट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो we've already spent too much time over this आप इस अपनी तसल्ली कर लें कि इनका वर्जन लिया गया था नहीं लिया गया था सर एंड देन ये रीप्रोब आप हमें इस हफ्ते के अंदर उसकी रिवाइज्ड रिकमेंडेशन दें मैं करवा देता हमने इसको पेंड नहीं करना ये अक्टूबर से चीज़ें चल रही हैं सर रीप्रोब करवा देते हैं सर थैंक यू जी नेक्स्ट पैरा 13.4.5 चकवाल का अटक का आखिरी पैरा जी सर CMIT को हमने PAC की डायरेक्शंस की रोशनी में सर रेफ़र कर दिया था और उन्होंने डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ कमेंट्स वगैरह मंगवाए सर वो हमने उनको दे दिए हैं सर CMIT इज़ फाइनलाइजिंग दैट थिंग सर रिक्वेस्ट है कि सर इसको CMIT की रिपोर्ट आने तक सर इसको पेंड कर दें सर इसमें इशू था वर्कर्स की सैलरीज का सर कमेटी expressed its serious concern on the firms not complying with legally mandated minimum wage. एक इशू तो ये था सर कि जिनको आपने आउटसोर्सिंग की हुई है वो मिनिमम वेज नहीं दे रहे. Committee observed that payment of minimum wages was not only a legal obligation but also essential for the well-being of the labor as well as
the integrity of the department. The committee directed that payment of outstanding amount with interest at applicable rates must be ensured to the concerned employees immediately, failing which the concerned firms be blacklisted. हमने कमेटी ने डायरेक्शन ये दी थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करके उन वर्कर्स को कॉम्पनसेशन दी जाए और ऐसी फर्म्स को जो मिनिमम वेज के साथ कंप्लाई नहीं कर रही उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए. सो देयर वर मल्टीपल इश्यूज दैट केम इनटू फोर बिकॉज ऑफ दिस पैरा. द कमेटी further directed that administrative department should scrutinize all such cases of violation of minimum wages across Punjab and refer the same to the CMIT within 15 days under intimation to the PSC. We never got that intimation. Moreover, audit should also focus on the issue of minimum wage during special audit of PMU and other departments. This is very important. आपकी ऑडिट के अंदर इस चीज को देखना कि क्या मिनिमम वेज पे की जा रही है. दिस इज इम्पोर्टेंट. द पैरा वाज केप्ट पेंडिंग. अब आप ये बताएं 3-4 इश्यूज थे इसमें. जी सर इसमें यह है कि हमने केस जो है इसको भेज दिया था CMIT को. सर उन्होंने हमसे कमेंट मांगे थे, पैरा वाइज कमेंट्स भी, वो भी हमने सर उनको दे दिए हैं. और टेकिंग लीड फ्रॉम द डायरेक्शंस ऑफ द PSC, इस साल सर हमने ये किया कि खुद ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मिनिमम वेज के मुतालिक वो ऑटोमेटिकली अमेंड हो जाता है. दिस टाइम फॉर 24-25 हमने सर वो कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम वेज के मुताबिक उनके एक्सटेंड कर दिए थे फॉर द जो अभी हमारा 37,000 की सर लिमिट है. सर जी सर आगे ऑडिट वालों ने कैटेगोरिकली लिखा हुआ है बेसिकली जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी. सर उस दिन बड़ी हीटेड डिबेट हुई थी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एंड वी वर ऑल वेरी कंसर्न कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स ब्रिंग अबाउट अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि इसके ऊपर बड़ी बदकिस्मती से ये भी ओपिनियन थी कि जब इस तरह की पेमेंट्स नहीं की जाती तो उसके बेनिफिशरीज कौन कौन पॉसिबली हो सकता है एंड देयरफॉर वी नीड टू टेक पेनेटिव एक्शन टू मूव फॉरवर्ड. तो आई थिंक उस दिन कमेटी ने जो विद इंटरेस्ट इनको पेमेंट का जो कहा था उसकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है वो होना बड़ी ज़रूरी थी. और आई मीन एज द ऑडिट की जो रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ है कि उनको पेमेंट्स अभी तक नहीं हो सकी. Sir, the matter was referred to CMIT for probe. वो गलत आपकी अंडरस्टैंडिंग है. इसमें 3 डिफरेंट डायरेक्शंस थी. पहली ये थी उनको पेमेंट के मिनिमम वेज लीगल ऑब्लिगेशन है, डिपार्टमेंट इंश्योर करे. दूसरी ये थी कि इस पर्टिकुलर पैरा में डायरेक्शन है कि पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट Kaibor applicable rate must be ensured to the concerned employees immediately, failing which the concerned firms will be blacklisted. If that payment has not been made, then I and this committee, we will be forced to, if it has not been complied with, then we will be forced to blacklist these contractors. Because we don't have any other option. The direction was very clear, immediately. That's what I'm bringing out, ना कि डायरेक्शन तो बहुत क्लियर थी. जनाब चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, स्पेशल सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आउटसोर्स करता कौन है? अगर इनका डिपार्टमेंट नहीं करता है हेल्थ डिपार्टमेंट, तो वो दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो जिम्मेदार है. मेरा हल्का PP 133 शाहकोट THQ में 2 महीनों की उनको सैलरी नहीं मिली. वो गरीब लोग हैं और जो गार्ड्स हैं उनको भी नहीं मिल रही, सफाई वालों को भी नहीं मिल रही. तो वो जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट ही अल्टीमेटली जिम्मेदार है और ये दूसरे किसी और पर जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती. और मिनिमम जो वेज है वो भी उस पर भी एक्शन होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला किया हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा. मैं सर ब्रदर फाजिल मेंबर ने जो
बात की इसी कनेक्शन में मैं हेल्थ डिपार्टमेंट पे मैं अभी के ये पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, मैं अभी के सेक्रेटरी हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा। ये तरीक़ाकार इस तरह था सर कि पहले एक इन्होंने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट यूनिट, क्योंकि एक ही सेक्रेटरी के पास दोनों स्पेशलाइज्ड और प्राइमरी थे, और लोग अभी भी मेरे पास मैं पिंडी का दे सकता हूँ डाटा, अगर पंजाब का इकट्ठा करें तो अरबों रुपए में बनेगा। पेंडिंग लाइबिलिटीज़ लोगों की अभी तक पड़ी हैं। पहले वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट यूनिट जो था वो मामला तय कर लेता था, तो फिर लोकली जाके तो पेमेंट हो जाती थी, ऊपर से डायरेक्शन होती थी। अभी एक चिट्ठी चली गई यहाँ से कि जी कोई पेंडिंग लाइबिलिटी पे नहीं करेगा, और मेरे ख्याल में मेरे पास जो खाली पिंडी की है वो करोड़ों में एक लिस्ट है। लोगों ने एक साल से चीज़ें सप्लाई कर दी, एक्सेप्ट हो गई, इस्तेमाल हो गई, लेकिन फर्मों को पेमेंट नहीं हुई। वो इस वजह से कि नए अब यहाँ जब से नई सेक्रेटरी साहब आई हैं वो चलती हैं बिल्कुल कानून और कायदे के मुताबिक, और वो जो पहले वाला निज़ाम था उसका अभी कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। वो चिट्ठी अभी तक स्टैंड कर रही है। स्पेशल सेक्रेटरी साहब बता सकते हैं कि पेंडिंग लायबिलिटीज़ को क्यों ब्रेक किया हुआ है, क्यों रोका हुआ है, लोगों की चीज़ें लेके उनको बिल क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, उसके किसके साथ मामलात उनके तय नहीं हो रहे। मैं पिंडी ज़िले की अरबों में, बाकी ज़िले अगर आप जमा करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट बनती है। अच्छा, हमें 1 घंटा लग गया है एक ज़िले को ख़त्म करने में। हम रियलिस्टिकली ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आज नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 डिस्ट्रिक्ट्स मज़ीद ले सकते हैं, तो वी विल टेक दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच आर द फारदेस्ट फ्रॉम लाहौर। मेरे ख्याल है उसमें एक चकवाल है और दूसरा जेलम है जी, रावलपिंडी और और कल के लिए डिप्टी कमिश्नर्स हजरात और जो ख़वातीन हजरात बल्कि जो मौजूद हैं वो उनके लिए कल से जूम की फैसिलिटी प्लीज़ अवेलेबल करें और लिंक शेयर कर दिया करें ताकि उनका पूरा दिन यहाँ ना लग जाए। तो हम अभी चकवाल, जेलम, मंडी का कितना अभी सर अटक का लास्ट पैरा चल रहा है। सारे आए हुए हैं जी, हाँ जी, सब सारे आए हुए हैं जी। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल और जेलम हम आज कर लेते हैं जी, और बाकी फिर हम वी विल टेक देम अप टुमारो एंड वी विल आल्सो गिव यू अ हुकअप, और उस हुकअप के साथ हम आपको मीटिंग के शुरू में इन्फॉर्म कर देंगे मीटिंग शुरू हो गई है, और जब एक डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होने वाला होगा तो तकरीबन कोई सेकंड लास्ट पैरा आपने देख ही लिया है, 20-25 मिनट लग जाते हैं। वी विल इन्फॉर्म यू कि जी उस डिस्ट्रिक्ट का आ गया। तो आई थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। यू मे लीव इफ़ यू हैव अदर बिजनेस टू अटेंड द डिस्ट्रिक्ट्स दैट वी आर नॉट टेकिंग अप टुडे जी। 2 और कर लेते हैं ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, अटक हमने आखिरी पैरा पे रह गया हमारा ना। नहीं, हमने CMIT की देखे ना, इसमें आप देखें हमारा PSE का CMIT को हमने ये कहा था, द कमेटी फर्दर डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट शुड स्क्रूटनाइज कि जो आपके मजीद कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो मिनिमम वेज फॉलो नहीं कर रहे, वो केसेस आप CMIT में भेजेंगे। इस पर्टिकुलर पैरा के अंदर आप इन मुलाजमीन को इनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज विद इंटरेस्ट, मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, बिकॉज ये उनके साथ सरीहन ज्यादती होगी कि आज हम उनको 5 साल पुरानी प्राइसेस पे उनकी कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। सो प्लीज लेट अस नो इफ यू हैव फॉलोड आवर डायरेक्टिव नंबर 5D, और आप बताएं हम 15 मिनट की रिसेस ले रहे हैं
10 बल्कि 5-10 मिनट की रिसेस लेके फिर हम आ रहे हैं। हाँ जी, अटक के we will reconvene in 5 back to the meeting and I call the house to order. हमें जी अटक इस पे पैरा जो पे कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए जी, आपने मंगवाई है? सर मैंने अभी वहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको मैंने कहा है सर इस मीटिंग में PND वो आ रहे हैं हमारे पास। इसमें सर ये कि ये जब ये जो भी सर मतलब है कि हमारी मिनिमम वेज को पूरा नहीं करता या जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज होती हैं किसी भी क्लॉज को वायलेट करता तो वी इम्पोज पेनल्टी ऑन दैट कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी उनको मैंने बुलाया सर, इसको मैं देख रहा हूँ। मैंने आपको पहले सर अभी ब्रीफ किया था कि अभी हम जो है PMU का सर अभी जो एज ऑफ दिस मोमेंट उनका जो इशू आ रहा है उनकी कुछ पेंडिंग लाइबिलिटीज़ मिनिमम वेज के रेफरेंस से क्रिएट हो रही हैं, वो उनके जो है सर वो आप ये कह रहे हैं कि उनको कुछ जो है बजट रिलीज़ होना था जिस वजह से वो नहीं किया। लेकिन वी आर मेकिंग श्योर कि जो भी है सर 1 जुलाई 2024 से मिनिमम वेज इंप्लीमेंट होगा। एज़ फार एज मतलब डिफरेंट अदर मैं PHFMC को भी सर हेड कर रहा हूँ, तो मैंने PHFMC में सर ये किया था कि तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट से उनको एडेंडम इशू किया एंड आई इम्पोज्ड मतलब है कि एडिड दैट थिंग के मिनिमम वेज जो है 37,000 के मुताबिक हो सर। तो वी आर इन द प्रोसेस सर डूइंग इट, लेकिन वो 1 जुलाई से ही इम्प्लीमेंट होंगे सर। तो एम्प्लॉइज़ की लाइबिलिटीज़ थी, क्या वो क्लियर हुई हैं कि नहीं? सर इसमें जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ का सर जहाँ तक है डिपार्टमेंट ने सर अक्टूबर में एक लेटर इशू किया था टू इंश्योर द फाइनेंशियल डिसिप्लिन कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके मुताबिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन करें और जो करंट बजट है सर उसको उसके मुताबिक जो है ना उसमें से पेमेंट जो है ना करंट ईयर की की जाए। इफ़ देयर इज़ एनी लाइबिलिटी तो उसको पहले प्रूव करें why that liability has occurred, प्रूव करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, फिर हमारे पास भेजें, उसको फिर हम फाइनेंस से टेक अप करेंगे टू मेक द पेमेंट सर। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन सर। किसी को पेंडिंग लायबिलिटीज आपने अभी तक उन कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया है कि PSE ने उन पे ये पेनल्टी इम्पोज की है कि दे हैव टू क्लियर द ड्यूज? नहीं किया सर। हमने डिस्ट्रिक्ट्स को लेटर इशू किया था, डिस्ट्रिक्ट्स एंड हमारा PMU जो है सर दे आर इन डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। सर दिस मीटिंग वाज कॉल्ड टू टेक स्टॉक, ठीक है ये हमारी पहली कंप्लायंस मीटिंग है, बट द डायरेक्शंस आर वेरी एक्सप्लिसिट, very clear. We use the word immediate. We say if they fail to clear these salaries with inflation adjusted, अगर नहीं करते तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ये हम डायरेक्शन पास कर चुके हैं। अब उसकी आज it is, I think this committee is quite helpless if that direction has not been implemented. Then we will have to go towards making sure कि फिर हम उनको ब्लैकलिस्ट कर दें, आज ब्लैकलिस्ट करवा दें या टाइम दे दें। सर अभी शेख साहब की मैं सारी गुफ्तगू सुन रहा था, आई थिंक कि वैसे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि वी आर एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट महकमाना, मेरा मतलब है जो पेमेंट्स हैं, लेकिन जी वही बात सर। तो आई थिंक कि ये सर ये सारी जो एक्सरसाइज आप बता रहे हैं कि 1 जुलाई से यानी कि जो भी आपने मेजर्स लेने हैं दे माइट बी फॉर फ्यूचर मिनिमम वेज इन्फोर्समेंट एंड एवरीथिंग। तो बाकी सर जो पीछे जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इट इज़ नॉट फॉर द महकमा टू पे, इट इज़ फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली ना, जो कि हमारी कमेटी की जो ऑब्जर्वेशन, कॉन्ट्रैक्टर्स को एक इतनी क्लियर डायरेक्शन के बाद हाउ कम के आई मीन यू हैव ऑल द अथॉरिटी टू ब्लैकलिस्ट देम या व्हाटएवर। तो आई थिंक ये तो अब तक इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए थी, आई पर्सनली थिंक।
कुछ टाइम दे दें सर, हमें इसको जॉइंट कंप्लाई में करवा दें। टाइम दे दें इनको, and then after that ऑटो वो कर दें, then give them देखें अगर then I will need the committee's consent from all members. Let's give them a very specific window. You ask him how much he wants. I would say give them till the end of this PAC ना. लेकिन ना they had नवंबर अक्टूबर में मीटिंग हुई, चले नवंबर दिसंबर जनवरी 90 days and February 100+ days हो गए. So just give them till the end of this PAC month and ask them to do. If they don't do it, then blacklist. So सर 1 month काइंडली दे दें, ताकि वो जो कुछ लीगल प्रोसीजर्स होंगे, कितने दिन का नोटिस देना है, वो सारी चीज़ें जो है ना सर थोड़ा सा उसको कंप्लाई कर लेंगे। और पेनल्टीज भी इन्होंने पे करनी है। जी सर, वो करेंगे एंकर, वो भी एडजस्टेड होंगी सर, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होंगी सर। आपको हम 1 month, sir. 1 month दे दें, yes, sir, 30 days दे दें, because sir the objective is to resolve the matter. Yes. जी 30 days हम दे रहे हैं। अगर 30 days पे आप contractors को blacklist fail to clear these payments, and contractors fail to pay the penalties to the government, sir, on 31st day, kindly they should be blacklisted automatically. Sir. This case should not come back. Sir. If they clear it in 30 days, then the para is settled. Sir. ठीक है, चलें जी। तो आगे सर ये सिक्योरिटी वाले और सारे इसमें शामिल हैं ना जी सर, जो आउटसोर्स किए हुए जो यस आउटसोर्स सर्विसेज जो भी हमारी पीएमयू ने की हुई है सर, उनमें वो मिनिमम ना देना तो एक अलग इशू है। पिछले 2-2, 3-3 महीने से उन गरीबों को मिली कोई नहीं। हमारे पास है जी डिस्ट्रिक्ट चकवाल। डिस्ट्रिक्ट चकवाल से कौन, क्या सीईओ चकवाल है यहाँ पे? सर सीईओ चकवाल सर, करंट सीईओ, फॉर्मर सीईओ, डीसी? मैडम डीसी मौजूद हैं। डीसी भी हैं। डीजी साहब, अगेन आई वुड से कि जो हमने एक्सरसाइज की है पैरास को कंबाइन करने की, वो एक बड़ी एफिशिएंट एक्सरसाइज थी। इट सेव्ड अस अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई थिंक दीज ब्रीफ्स शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड on the same pattern, because अब हम फिर उसी में फंस गए हैं एक पैरा वाली में। इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कॉमन नेचर की हैं, सिमिलर पैराज हैं, सिमिलर इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप उस तरह का हमारे पास ब्रीफ बना के लाते हैं तो अब तक हम 40-50 क्लियर कर चुके हुए होते हैं। सर अगर वो मेरे एंड पे होता तो सर मैं बना लेता। ये डिपार्टमेंट के पास ही स्टेटस है सर, इन्होंने करना था। मेरे पास जो तो साउथ का आया ना जी, हमारे पास साउथ का ब्रीफ उसी फॉर्मेट पे आया। वो सर डिपार्टमेंट ने लीड लिया होगा सर उसने। अब आप इसको पहले आप पैराज में जो पैराज पे अग्रीमेंट है डिपार्टमेंट का और ऑडिट का कि दे शुड बी सेटल्ड और सारी रिकवरीज हो गई हैं, उन पैराज को जल्दी से पहले टच अपॉन कर लें। सो यू विल गाइड अस। सर पैरा 1 में पार्शियल रिकवरी है, तो जो पेंडिंग है सर वो मतलब है उसको वो भी रिकवरी अंडर प्रोसेस है सर। इट्स अ वेरी मिनिमम अमाउंट सर, 3,60,000 है, इसको करके वो आगे कर दें, इसको रिड्यूस करके सर। ये 3,60,000 वाला ही जी सर। बाकी को एक्सेप्ट कर लें 360 को, उसको आप जल्द से जल्द। टोटल 540 था। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इसमें इसको सेटल करें जी, खत्म करें इसको रिकवरी को। सर इस दफा हमने सर कौन है इन्फोर्समेंट, कौन करता है जी रिकवरीज की? सर सीईओ मतलब है कि अपने लेवल पे करते हैं सर। बट एफडी इज द एनफोर्समेंट आर्म ऑफ पीएससी। सर हमने जैसे आप कंप्लायंस ले रहे हैं, इस तरह कंप्लायंस जो है वो उनको दिखानी होती है जैसे, लेकिन रिकवरी तो डिपार्टमेंट ने खुद करनी है और ये तो ऑफिस में बैठ के करने वाली बात है सर, ये इस पर तो पैरा भी नहीं बनता है। चलें आगे चलें जी। सर ओवर पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस था सर, इसके ऊपर डायरेक्शन ये थे कि सर इसमें प्रोब कंडक्ट करें, कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट दें सर। कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट सर आ गई है, डिपार्टमेंट हमें रिसीव हो गई है सर।
जी डी जी साहब ये अपग्रेडेशन की सर ये कि जो इलीगल अपग्रेडेशंस थी उनको कहा गया था कि ख़त्म करके तो उस हिसाब से सर किया जाए। ये सर 2011 से सर ये फोर्ट एक्ट जो है ये सर इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि स्प्लैशिंग के बगैर ही डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इसका अपना जो अपने तौर पे स्टांस लेके किसी ने कुछ सर किया, किसी ने कुछ डिसीजन लिया सर ग्रेड कोई 9 से 16, 9 से 14 और 9 से 12 इस तरह की सर दो थी। जी सर सर इसमें ग्रेड 16 वाले आते हैं 11 साल बाद जो वापस होंगे वो वाला इशू है। जी सर इसमें जो ग्रेड 16 के हैं सर वो डीजी ऑफिस के आते हैं, 15 तक सीओस के लेवल पे आते हैं सर। 30,000 आदमियों का ये इशू है, 9,000 इसमें से रिटायर सर ऐसे ही है। आज तक पेंशन नहीं मिल सकती, धक्के खा रहे हैं और उसमें कमेटी का डिसीजन भी आ गया हुआ है, अभी तक ये महकमे के पास पेंडिंग पड़ी हुई। इसमें ये सर ये कोर्ट में केस सर ये बिल्कुल दुरुस्त है, मेजॉरिटी केसेस सर कोर्ट में है। सिर्फ ग्रेड 16 के सर हमारे डीजी के दायरा में आते हैं सर, और 15 तक सर डीएचएज में आते हैं सर। डीजी साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, लेकिन शायद मुझे हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो दोबारा आपको पढ़ के सुनानी पड़ेंगी। द कमेटी डायरेक्टेड दैट डीजी हेल्थ सर्विसेज should present a comprehensive report in the next meeting on upgradations pointed out by audit and their subsequent withdrawal. ये करते 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 जब आप कतरा ऐड करेंगे हर ज़िले में तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। हमने इसलिए आपको कहा था कि आप हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविंस वाइड रिपोर्ट सबमिट करें। तो इसमें सर ये था कि ये इनका अलाइड वर्क वालों का सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं दिया था प्रमोशन का कोई। इन्हें फिर सीएम साहब शहबाज शरीफ साहब ने 4 स्टेप प्रमोशन का एक इन्हें अप्रूवल दी थी गवर्नमेंट ने, ये अप्रूव हो गए। ये 10-11 साल अपनी पे लेते रहे। फिर एक डीजी साहब आए जिन्होंने कहा नहीं जी वो गलत हुआ था। फिर उसके लिए फिर एक कमेटी बनी, कमेटी ने ये फैसला किया कि इसे रेगुलाइज किया जाए। ये तो हो नहीं सकता कि एक बंदा इस जगह भर्ती हुआ और वो सारी ज़िंदगी उसी जगह रहेगा। उस बेसिस पे दोबारा उसको उन्होंने रेगुलाइज करने के लिए फाइनेंस के पास जाना था, और फाइनेंस के पास जिस स्पेशल सेक्रेटरी ने या एसओ ने भेजना था सेक्शन ऑफिसर ने, वो पिछले 2 साल से 2.5 साल से अपने पास दबा के बैठे हुए हैं। 30,000 बंदे थे जिनकी प्रमोशन का इशू था, 9,000 उसमें से रिटायर हो गए हैं। पेंशन उन्हें 1 रुपया नहीं मिल रही कि वो जो उन्हें दी हुई थी वो रिकवरी में पड़ गई है, और वो अभी तक धक्के खा रहे हैं, और उसमें से गालबन कुछ फौत भी हो गए हैं, और उनके अभी पिछले जो हैं वो भी देख रहे हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। और ये जो ऑब्जेक्शन ऑडिट का था ये इनफेक्ट होना ये रेगुलाइज था। एक बंदे को आप 12 साल तनख्वाह दे उसका कसूर तो नहीं, रेगुलाइज गवर्नमेंट ने किया था। 11 साल वो पे लेते रहे, लेने के बाद जिसका इख्तियार नहीं था उसने उसे कर दिया, फिर कमेटी ने उस पर फैसला भी कर दिया। वो प्रोसीडिंग अभी तक पेंडिंग में, उसकी तरफ कोई जा नहीं रहा, और उनसे उल्टा रिकवरियाँ शुरू कर दी। क्या डिपार्टमेंट का क्या मौक़िफ़ है इस पे? जो भट्टी साहब कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी इन एम्प्लॉइज़ के साथ ज़्यादती हो गई है। बताया सर हमने डिपार्टमेंट की डायरेक्शन पे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज में एक टेक्निकल कमेटी, सर आई एम डॉक्टर नासिर सर, आई एम डीलिंग दीज एएसपी केसेस, टेक्निकल कमेटी बनाई थी जिसकी रिकमेंडेशंस पे हमने डिपार्टमेंट को लिखा था वो तमाम पेंडिंग केसेस जो रिटायरमेंट के लिए डीजी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं ग्रेड 16 के, क्योंकि सर डीजी हेल्थ सर्विसेज का जो है इख्तियार जो है ग्रेड 16 के लाइट प्रोफेशनल्स के लिए
है उस पे सर डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से हमें उनकी डायरेक्शन पे हमें कह दिया था कि 80% पेंशन दे दी जाए अंडर रूल 1.8 ऑफ द पेंशन रूल्स। हमने सर उनको देना शुरू कर दी थी सर। 20% का इशू है और हमारे पास तकरीबन सर टोटल जो रिटायर्ड हो चुके हैं मेरे यहाँ 3627 एम्प्लॉइज़ हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ये प्राइमरी हेल्थ के हैं सर। नहीं करनी है ये आपकी रिपोर्ट नहीं, आपने होमवर्क नहीं किया हुआ। सर I was coming to this particular point जो भी आप बात कर रहे हैं अभी शेख साहब ने फरमाया कि जी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है ना जी। अभी जबकि जो इधर कंप्लायंस जो लिखी हुई है और जो ऑडिट ने भी लिखा हुआ है इट सिंपली सेज बिकॉज सर हम अपने परव्यू में या एम्बेड में नहीं रहेंगे ना तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा काम। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोनों कंप्लायंस रिपोर्ट में भी और ऑडिट ने भी यही आइडेंटिफाई किया है कि रिपोर्ट नहीं है, या होती तो इधर फिर क्यों लिखा हुआ है? आई मीन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस ना? बात रिपोर्ट की नहीं है सर, बात ये है सर मैं कह रहा हूं जो ऑडिट का ऑब्जेक्शन है वो बनता नहीं था लीगली, उन्होंने लगा दिया ये रिकवरियों की तरफ मामला चलना शुरू हो गया, जबकि उनके साथ ज्यादती हुई है मुलाजमीन के साथ, उनका कोई पुरसाने वो मामला जो है वो ऑफिस में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन्हें उनके ड्यूज मिलने चाहिए, उन्हें उनकी प्रमोशन। भट्टी साहब इसमें रिकवरीज ऑर्डर नहीं की हुई, हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, अगर फर्ज करें इस वक्त व्हाट आई ये दोनों डिपार्टमेंट सर प्राइमरी और स्पेशलाइज्ड के बना के कमेटी सिंपली नीड्स टू सी कि जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो अगर नहीं आई तो क्यों नहीं आई और कब आएगी, बिकॉज उसकी रोशनी में विल हैव टू मूव ऑन। सर उसको फिर हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं सर। रिपोर्ट आ गई है सर, लेकिन ये है कि ऑन आवर पार्ट ये लेट आई है। प्लीज इसको कम से कम कंप्लायंस में सर ये लिखा नहीं हुआ नहीं सर, वो हमने वो यानी इधर जो कम से कम हमने तो वो देखना जो सामने पड़ा है, इसके अंदर इट कैटेगोरिकली यू आर सेइंग कि इट्स नॉट देयर एंड देन नॉट देयर एट दैट। एनीवे इस रिपोर्ट को ले कर दें इन दिस सेशन सर, ताकि अगर ये पैरा सेटल करना है तो हम इसको सेटल कर लें सर। राइट, ठीक है सर। लेट्स नॉट टेक इट, अगर हम आगे ले गए 3 महीने आगे चला जाएगा सर। जो सीएम ऑफिस की तरफ से जो कमेटी बनी थी 8 रुकनी, उसका भी जो डिसीजन था वो भी उस रिपोर्ट के साथ लेकर आए इस कमेटी। ठीक है, आगे चलें जी। तलागंग MS नॉन डिडक्शन ऑफ रिकवरी होगी जी पूरी? नहीं, ऑन गोइंग है। 4.3 में सर रिकवरी हो चुकी है सर, SDAC ने रिकमेंड किया है सेटलमेंट के लिए। सेटल करें इसको रिकवरी पूरी करके। अगला जी, नॉन रिकवरी ऑफ पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग लीव, इसमें भी रिकवरीज ऑर्डर की थी हमने सर। इसमें 27,000 की रिकवरी रहती है सर, बाकी सारी हो चुकी है सर। पैरा सेटल कर दें सब्जेक्ट टू द रिकवरी ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। जी ठीक, चलिए वेरीफाई करा दें सर। वेरीफाई कराएं, सेटल करें जी। आगे सेटल डन हो गया। ओवर पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, इसमें से भी सर 2 लाख, इसमें 9,02,400 सर हो गई रिकवरी आउट ऑफ 1.02 मिलियन। सेम इंस्ट्रक्शन, रिकवरी कम करके इसको सेटल करें सर। सर वेरी गुड, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। ये जब आप ये सर रूलिंग दे रहे हैं कि सेटल्ड सब्जेक्ट टू, सो आई थिंक फिर से लैप्स हो जाएगा और सर थोड़ा सा टाइम फ्रेम बताते हैं। आई थिंक ये सैलरी से डिडक्ट हो रही है ना एवरी मंथ। अच्छा सर, इसमें इस दफ़ा SDAC बस फिर ठीक हो गया। फिर सर SDAC में हमने ये फैसला किया था मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे ये रिकवरी थी, बेहतर हो गया सर। सर रिकवरी जहाँ पे भी थी और थोड़ी है, हमने उनको ये कहा था कि आप सैलरी के थ्रू ना करें, चलान 32A के तहत करवा दें लोगों से। तो इस दफ़ा हमने हो गया सर। इसे हमने इंस्ट्रक्शन इस दफ़ा यही दी थी कि आप जो छोटी पेमेंट्स हैं इनको लिंगर ऑन ना करें, चलान 32A के तहत आप जो है ना इसको जमा करवा। 14.4.6 irregular procurement in violation of PEPRA rules ₹70 million, DHQ चकवाल। जी
जी अस्सलाम वालेकुम सर इसमें जी सर इसमें कुछ पॉइंट जो नोट किए गए थे कि एक तो ये कि ये इस पे पेपर पे अपलोड किया गया और DGPR को लेटर भी लिखा गया, वो भी मौजूद है, एक लोकल न्यूज़पेपर में भी आया, नेशनल में नहीं आया सर, और सर हॉस्पिटल की वेबसाइट पर भी मौजूद है इसका। मैं आपको हदायत हमारी पढ़ देता हूँ। The para was kept pending with the direction that relevant record in support of departmental contention in this meeting be produced to audit for verification within 7 days, failing which disciplinary action will be taken by the administrative department against the responsible incumbents. सर इसमें जो वेरिफिकेशन अभी रिसेंटली हुई है सर, ये ना तो DGPR को लिखा गया सर, एक लोकल अखबार है जिसका नाम है आईना जहां, उसमें सिर्फ एक अखबार में ये एडवर्टीजमेंट है, उसके अलावा कहीं नहीं है। आईना जहां? जी सर, आईना है जहां सर DGPR को लेटर लिखा हुआ है सर, एविडेंस मौजूद है सर। ये तो पिछली कमेटी में यही बातें हुई थी सर, सेम एविडेंस है, कोई फर्दर हमें सर वेरीफाई नहीं करवाया गया सर इसके ऊपर। DGPR ने ये जो एडवर्टीजमेंट है वो उनके थ्रू नहीं हुई है, इन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, इन्होंने एक लोकल अखबार में लगा दिया, यही लेटेस्ट वेरिफिकेशन। ये तो वायलेशन है जी, बहुत इलीगल है, ये बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। सर इसकी रिकमेंडेशन यही है कि इसको रेगुलराइज कराया जाएगा आफ्टर द प्रोब, मतलब है कि प्रॉपर हम रेगुलराइज कर दें सर, लेकिन नहीं, आप रेगुलराइज नहीं सर करेंगे, दैट विल बी डन बाय द FD, लेकिन उसमें बाकायदा ये होगा कि प्रोब में अगर इफ देयर इज समथिंग अगेंस्ट समबॉडी तो उसके खिलाफ बाकायदा वो तो इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं हम पहले ही सर, वही हम करेंगे। आप कमेटी की पढ़ें डायरेक्टिव को। हाँ जी, आई थिंक कि जो पहले अपने नहीं सर, लेकिन ये तो अगर आप हम इसका मतलब है कंप्लायंस मीटिंग ना बुलाते तो डायरेक्शंस, इसका मतलब है पढ़ता ही कोई नहीं है, इम्प्लीमेंट ही कोई नहीं करता। 7 दिन की डेडलाइन रखी है, कमिट किया है आपने सब ने, अब आप आगे हमें वही बता रहे हैं और हम दोबारा वही बातें कर रहे हैं जो हमने आज से 6 महीने पहले की थी। सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जब ये हो रहे थे, सेक्रेटरी साहिबा खुद बैठी थी यहाँ पे और सेक्रेटरी साहिबा अग्रीड टू द टाइमलाइंस। जो सेक्रेटरी हेड थी वो यहीं पे बैठी थी जहाँ पे DC साहिबा बैठी। The time for verification has passed. With the secretary साहिबा। The time for verification has passed. Sir, I think the audit is also convinced that इसमें है मसला, तो I think जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको full for सर मेरे पे अगर कोई इल्ज़ाम लगे, मैं उस दाग को, उस धब्बे को धोने के लिए कोशिश करूंगा कि मैं कल सुबह जाके अपने आप को एग्जोनरेट करवा लूं। इतना बड़ा एलिगेशन लगे, 7 दिन का आप टाइम लें और 6 महीने बाद आप आके वही बात दोहराएं, तो फिर आपकी क्या मंतक क्या कहेगी, ज़हन क्या कहेगा? Anyone has any suggestion on? Because we also Sir, need I think आपने तो पहले ही रूलिंग तो दे दी ना कि if this is not done, it has not been done. No evidence has been provided. I mean, as per the report, as per this document in front of us, there is no evidence. So let's proceed with what you have directed. आगे चलिए। सर ये क्यों सर 7 दिन का टाइम था, वो अभी तक हुआ नहीं, क्या वजह बनी? तो पेपरा की सर वेबसाइट पे भी दिया है सर, और जो हॉस्पिटल की सर वेबसाइट है उस पर भी सर मौजूद है सर। हमने पिछली जो हमारी हियरिंग थी सर उसमें DGPR को जो हम इसमें मेंशन नहीं होता सर, हमने DGPR को लेटर भी लिखा था, वो भी सर हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो सर अब रिक्वेस्ट का यही सर, हमने पेपरा की वेबसाइट पे मौजूद है, DGPR को लेटर भी सर हमने लिखा है और हॉस्पिटल की सर वेबसाइट पे भी मौजूद है सर। सर एक रिकमेंडेशन है सर, में दिया है सर, जब तक कि हमारी मीटिंग चल रही है इस वीक के अंदर उतनी देर तक महकमे को बोल दें, अगर कुछ है तो सामने ले आएं, अदरवाइज इम्प्लीमेंट कर दें जो आपने पहले इन्फोर्स किया। Don't give 1 month or 1 week. ये मीटिंग के एंड तक अगर कुछ है तो सामने आ जाए, नहीं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये ठीक है, तजवीज़ ठीक है चेयरमैन साहब, इसको ज़रा देख लें, इसके मुताबिक ज़रा
14.4.7 overpayment to contractor on account of procurement of ambulances rupees 4.364 million. I think ये वो वाला पैरा है कि जिसमें imported ambulances आनी थी और वो new ambulances का ऐड गया था और refurbished 2 साल पुरानी आई थी और PSC ने उसमें 40 million. The amount is 40 million. ये 4 million is the tax liability. So उस 4 million tax liability से audit ने ये discover किया था कि जी वो तो ambulances ही पुराने मॉडल की आई हुई हैं जिनकी गुंजाइश procurement rules में मौजूद ही नहीं है. So the departmental representatives were unable to render any concrete justification जी किधर है हाँ जी हमने SNGAD को एक बड़ी डिटेल्ड TORs बना के इंक्वायरी रेफर की थी whether the procuring agency was competent to purchase the ambulances and whether ambulances were procured by any other district health authority in the province. Number 2, whether the procurements were made as per actual requirements after fulfilling codal formalities in accordance with the policy of the government and financial rules. Number 3, whether any relaxation of policy or instructions of the government was obtained for this aforesaid procurement. And number 4, why did the administrative department fail to exercise internal control? The committee further desired that the inquiry be finalized within 15 days under intimation to the PSC. Have we received any intimation, Adnan Saab? But हमने तो SNGAD को रेफर की थी. सर SNGAD ने डिपार्टमेंट को कहा कि आप प्रूव करके हमें दे दें सर. हमने प्रूव करके उनको मतलब फॉरवर्ड कर दिया था और वहाँ पे सर इसकी हेयरिंग्स हुई हैं. अभी इसका जो है हमारे पास फाइंडिंग्स नहीं आई सर कमेटी. सर ये गालिबन वो क्लासिकल पैरा था जिसमें जो 2 जिम्मेदारान थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे who was the then commissioner was promoted to the secretary level and जो CO साहब थे अगले स्टेप पे प्रमोट हो गए थे इसके नतीजे में. तो मैं ये चाहूँगा कि ये देख लिया जाए कि वो मंडी बहाउद्दीन का जी अच्छा ये वो नहीं है. ओके अच्छा सर इसमें इंस्ट्रक्शन तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि 15 डेज के अंदर अंदर जो है किया जाए. सो अपेरेंटली नहीं लेकिन आई मीन इवन इफ इट इज सर अपेरेंटली सर नॉन कंप्लायंस है अभी तक. सर विद योर परमिशन Observations, conclusions. During course of interrogation and after going through all the records submitted by the officers, ambulances procured by DHA against approved cost of 42 million as mentioned in PC1. Provision of 5 ambulances was available, however 4 were procured. As per vehicle import documents, vehicles imported by different individuals and not by Guess Hyundai Solutions Private Limited, so this firm may not claim any tax exemption. Therefore, total applicable GST amounting to rupees 5.7 million may be recovered from MS Guess Hyundai, German name Solutions. Number 3, during physical verification of the ambulances parked in 20-bedded RHC level hospital, Latifal, District Chakwal, it was observed that there was no proper shed available for parking of these ambulances, due to which they were rusted and colors were faded. Yeah, istemal nahi ho rahi. During review of bidding documents, it was observed that as per knockdown criteria, it is mandatory to submit balance sheet, financial statement, and annual turnover of last 3 years. However, as per FBR record, MS Guess Hyundai Solutions registered itself for income tax on 9th March 2020, and for sales tax, it was registered on 6th June 2020. Hence, the said firm has not fulfilled the knockdown criteria of mandatory 3 years of business experience.
यानी ये फर्म एलिजिबल ही नहीं थी. सर इशू ये है कि ये प्रोजेक्ट जो था ना सर. Let me finish ji. However, the technical evaluation committee has not raised any observation and the firm was shortlisted. It shows that favor was given to MS Gesundheit Solutions Private Limited by the procuring agency. Recommendations based on above narrated facts and available record, the probe committee concluded that the technical evaluation committee did not evaluate the firm's eligibility as per published criteria and PEPRA financial rules and allowed the firm to participate in the financial bids from the procurement of ambulances, committing inefficiency and misconduct. Number two, as the vehicles were not imported by MS Gesundheit Solutions, therefore total applicable GST amount of rupees 5.773 million may be recovered from MS Gesundheit Solutions. The probe report is submitted pursuant to directions of competent authority dated 13/11/2024. Additional note, क्या कहता है जी? The former CEOs of DHA Chakwal, who initiated the procurement process, issued purchase orders and oversaw the receipt and delivery of all 4 ambulances, authorized excess GST payments, and did not recover the amount from the selling company, along with the members of technical committee, physical verification, inspection committee, biomedical engineer, and procurement officer of DHU Hospital Chakwal, who carried out the procurement process of 4 refurbished ambulances instead of the new ambulances as implied in the approved PC1, may have played a role in overlooking irregularities in the procurement and payment processes, and their actions are subject to scrutiny. These actions or lack thereof may be considered by the forum in determining potential accountability. ये है जी सारी ये रिपोर्ट है जी महकमे की इंटरनल जो इनकी रिपोर्ट है. जी ने हमें और कहा डायरेक्शन दी थी कि आप ये कर दें सर. तो ये हमारे 3 मेंबर्स ने इंक्वायरी की थी सर. तो ये प्रूव किया था, तो उनकी रिकमेंडेशंस हैं ये सर. इनफैक्ट सर ये जो प्रोजेक्ट था दैट वाज स्पॉन्सरिंग एजेंसी इसकी सर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स थी फेडरल गवर्नमेंट की सर. ये उन्होंने फंडिंग की थी और एक्सिक्यूशन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ने की थी सर उसमें. तो समहाउ ये मतलब है कि वो उस टाइम पे कुछ लोग थे जिनकी वजह से ये जो है मतलब है कि ये प्रोजेक्ट वहाँ पे आया चकवाल में एंड इट वाज कंडक्टेड. ये फेडरल गवर्नमेंट का फंडिंग थी सर इसमें. The hospital operational, are the ambulances being used? जी सर हॉस्पिटल फंक्शनल है और एम्बुलेंसेज फंक्शनल हैं लेकिन यूज़ नहीं हो रही सर. वो खड़ी हैं. तो यार उसको किसी साहब किसी और हॉस्पिटल में भेज दें जहाँ पे रिक्वायर्ड है. क्योंकि सर डिपार्टमेंट तमाम अपनी एम्बुलेंसेज जो है 1122 के हवाले कर दी थी. तो ये फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में एम्बुलेंस खरीद ली जो कि उनका स्कोप नहीं है, मैंडेट फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है. They cannot, this is a devolved subject. So there are so many problems in this case. मैं वैसे मेंबर्स को कहूँगा कि they weigh in, but मेरी तो पर्सनली इसमें इंटरवेंशन ये होगी कि दिस कॉन्ट्रैक्टर और such contractors or such people who think that they can rig the process, such people who think that they can get favors for financial benefit and get away with it. I think this committee should send a very strong message, and this contractor should be penalized. Either या वो नई उस स्पेसिफिकेशन की एम्बुलेंसेस डिलीवर करें या वो अमाउंट सरेंडर करें उतनी जितने की आती हैं, and they should definitely be blacklisted and barred from participating in any public procurement in future. Sir, अभी शेख साहब जैसे बता रहे थे, this was funded by the federal government and executed also by a federal department.
So, I mean, do you think ये, I mean, we are in this position कि इसके ऊपर कोई भी काशिफ साहब, ये हॉस्पिटल फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था और एम्बुलेंसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चकवाल ने प्रोक्योर की थी. Okay. Because I thought कि शायद हम इसको फेडरल PAC में भी रेफर कर सकते हैं मामला का. नहीं, सही है. नहीं सर, मैं कंफ्यूजन थी ना मुझे कि शेख साहब कह रहे थे ना कि फंड्स भी वहाँ से आए एक्सिक्यूट. हिकमत की हो सकती है, हिकमत के तहत ये फैसला किया जा सकता है. अगर ज़्यादा पसूड़ी डालनी तो उधर ही वही थे. सर, the amount in question was paid by the government of the Punjab. तो इसलिए हमें इस पे करना चाहिए. And I agree with your जो भी आपने डिसीजन किया. इसमें चूंकि पंजाब गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रूल्स के तहत प्रोक्योरमेंट हुई है, इसलिए हमारा ही पैसा है. फंडिंग बात है. बस सर यही कंफ्यूजन थी ना, बिकॉज शेख साहब कह रहे थे काइंडली जो माइक्स यूज नहीं हो रहे वो बंद. सीओ साहब, माइक आपका खुला हुआ है, प्लीज उसको यूज करके. ये सर रिपोर्ट जो है SNJD को हमने फॉरवर्ड कर दी थी, मेंबर वो कर रहे हैं इंक्वायरी. तो सर ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही को क्यों, जो उस वक्त के गवर्नमेंट ऑफिशियल से जिनको ये देखना था उनके मर्जी के बगैर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा. क्या उनको हम बिल्कुल एक्सोनरेट कर रहे हैं इससे? आप बताएं ना अपना CEO साहब के अपना सेक्रेटरी साहब कि उस वक्त के इनकम्बेंट्स, ये तो ऐसे रिपोर्ट उस वक्त के इनकम्बेंट्स पे डायरेक्ट कहती है कि उन्होंने ओवरलुक किया है. सर ये किसी ने पढ़नी है? सर इस टेक्निकल कमेटी जो है उसमें तमाम रिप्रेजेंटेटिव मतलब है कि वो उस टाइम के हैं मौजूद है. नहीं, इस वो डिस्प्ले जो आपने की है ना उसमें उस पे आ जाएं, पिछली वाली पे जो डिटेल्ड इंक्वायरी है ना, हाँ इसके ऊपर आ जाए. ये है असल में जो कंक्लूजन है. वैसे लंबी है, बहुत लंबी रिपोर्ट है, मैंने सिर्फ उसका एंड पढ़ा है. बड़ा कर दें इसको, जूम कर दें थोड़ा सा. नहीं पढ़ा जा रहा है सर. अभी जो बात की है, आई मीन आई थिंक एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट. सिर्फ व्हाई ओनली कॉन्ट्रैक्टर्स, व्हाई नॉट? कॉन्ट्रैक्टर पे तो मेरा दैट वाज माय, आई थिंक कॉन्ट्रैक्टर को तो डेफिनेटली एक हेवी फाइनेंशियल पेनल्टी पे करनी चाहिए. 100% अमाउंट कवर. तो सर जो मैल प्रैक्टिस ऑन बिहाफ ऑफ द, सर अ प्रेसिडेंट शुड बी सेट फॉर दीज ठेकेदार्स कि इस तरह की गोली कराओगे तो फिर रियासत जो है ना वो पूरा उसका हिसाब लेगी. मेरा इसमें क्वेश्चन है कि चूँकि उस मीटिंग में मैं यहाँ नहीं था, उस दिन एब्सेंट था, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसने जो अप्रूवल दी है वो 1.02 बिलियन की दी है, विच इंक्लूड्स बिल्डिंग, मेडिकल इक्विपमेंट प्लस एम्बुलेंसेज. उसमें जो उन्होंने एम्बुलेंस की कॉस्ट है वो 3 करोड़ 60 लाख रखी हुई थी. और नीचे जो इंस्ट्रक्शन गई, इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर आइटम विल बी टेकन अप बाय द प्रोक्योरमेंट. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ने करनी थी लेकिन उनके फंड से करनी थी. वाई वो फंड्स किधर गए जो फेडरल गवर्नमेंट के फिर फंड से? मतलब इसमें इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर आइटम्स विल बी टेकन अप बाय द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू दिस अप्रूवल, which was 1.02 billion, which includes ambulance, office furniture, 36 million की. With your permission, तो ऑडिट भी बताए ना क्या वो डुअल पेमेंट हुई दोनों तरफ या उसका क्या? एक्सक्यूज मी सर, सीए फॉर्मर CEO हेल्थ चकवाल सर. सर ये पैसा था फेडरल गवर्नमेंट का ही था. 102 में से 800 सर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो की थी फेडरल वालों ने. हमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट के लिए पैसे दिए गए थे और पैसा उन्हीं का था, पंजाब गवर्नमेंट का नहीं था. आप यही मेरा सवाल था कि भाई यहाँ आया क्यों, पंजाब गवर्नमेंट के फंड ही नहीं इन्वॉल्व.
सर पंजाब फंडिंग की इशू नहीं है सर, फंडिंग किसी की भी हो, under what arrangement? गवर्नमेंट रूल्स को देखना है। Under what arrangement did the federal government transfer its money to the district health authority? Is there anything that you can share with us and educate us, because this is the first? सर इसमें डिपार्टमेंट फुली तौर पे इन्वॉल्व है, डीजी ऑफिस भी इन्वॉल्व था हर कॉरस्पॉन्डेंस में सर। जी सर। पैसा आप तक पहुंचा कैसे? सर अकाउंट में आया था फेडरल की तरफ से, लेकिन उसकी परमिशन ली गई थी पंजाब गवर्नमेंट से। No, this is what they are saying. लेकिन सर कह रहे हैं कि जब प्रोक्योरमेंट के एक सूबाई अथॉरिटी ने की तो देयरफॉर प्रोक्योरमेंट रूल्स की फॉलोइंग जो है ये उसमें जो भी पैसा पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकाउंट के जरिए किया गया, तो इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ बाय अस। नहीं सर, ये सर वो इट वाज ट्रांसफर टू, वो बता रहे हैं ना कि पंजाब गवर्नमेंट के अकाउंट्स में होता हुआ है। नहीं सर, मैं डिसएग्री करूंगा सर। जब पैसा देते हैं ना तो उसको दिया जाता है कि ये एक्सपेंडिचर किया जाएगा विद आर कोडेड फॉर्मेट। और सर क्योंकि प्रोक्योरमेंट यहाँ पे हुई है तो ऑब्वियसली यानी कि सर उसमें सारी स्पेसिफिकेशन भी मौजूद थी PC1 के अंदर, उन स्पेसिफिकेशन के तहत परचेज हुई है। क्या स्पेसिफिकेशन में मेंशन था कि उस मॉडल की बजाय आप लोअर मॉडल? सर लेटेस्ट मॉडल था और उसमें फाइनेंशियल में, लेकिन जो परचेज की गई वो तो नहीं थी ना सर, जो से फाइनेंशियल बिड में किया गया था, टेक्निकल में और कंपैरिजन स्टेटमेंट सारे में सर वो 2017 मॉडल ही लिखा हुआ था। कहीं पे भी ये नहीं कि बिल कोई और बना है, इनवॉइस कोई और बनी है। नहीं, जब जो दी गई थी अप्रूवल, सर लेटेस्ट मॉडल की दी गई थी, सर उसका लेटेस्ट की तो नहीं दी गई थी सर। ये यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती, बाहर से मंगवा के दी जाती है। जहाँ से भी दी जाती है आपको, जिस अथॉरिटी के जरिए उसको परचेज किया गया, दे शुड हैव मेड इट श्योर कि वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है जिसका कि अप्रूवल आया और जिसके पैसे आए हैं। सर उसमें एम्बुलेंस की स्पेसिफिकेशन से लेटेस्ट मॉडल था और इसको ओवरलुक किया है टेक्निकल कमेटी ने, वो इसमें लिखा हुआ है। तो लेटेस्ट मॉडल नहीं था ना सर नहीं, पाकिस्तान में पुरानी चीज़ों की प्रोक्योरमेंट या रिफर्बिश्ड की प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकती, बहुत सिंपल एक चीज़ है सर। इसमें टेक्निकल कमेटी ने ओवरलुक किया है, उसमें लिखा हुआ है। सर ये अगर इजाज़त दें तो फंड्स तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हेड से यूज़ हुए जहाँ से भी आए, और जो रूल है कानून कायदा उसके मुताबिक होने चाहिए थे। अगर नहीं हुए तो फिर जो हमारा लॉ कहता है उसके मुताबिक इसके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। सिंपल बात। पैसा फेडरल का था, पंजाब का नहीं था। फंड्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नहीं है सर, फेडरल गवर्नमेंट के हों लेकिन थ्रू सर प्रोविंशियल हेड यूज हुए ना। लेट्स सपोज इट वाज अ डोनेशन फ्रॉम जायका फॉर एग्जांपल, तो वंस इट्स ट्रांसफर्ड और उसका प्रोक्योरमेंट के लिए सारी जिम्मेदारी जो है वो अगर पंजाब गवर्नमेंट की थी, तो देन ऑब्वियसली दिस कम्स इनटू एम्बिट एंड परव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। एंड सेकेंडली वो कह रहे हैं कि लेटेस्ट मॉडल की इंपोर्ट नहीं होती, 17 की मिल सकती है यहाँ पे। आप आज 2025 मॉडल इंपोर्ट करें, हो जाएगा, पैसे दें आप, मिल जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है। सर आई वुड रिक्वेस्ट कि ये मेंबर इंक्वायरीज़ के पास से ये मतलब ये रिपोर्ट भी उनके पास चली गई है, दे हैव कॉल्ड एवरीबॉडी, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मगर उसका उनको मतलब है कि रिपोर्ट आने दें। सर ये रिपोर्ट आने सर मेरा भी यही ख्याल है कि ये तो गोली है सर एक। जी नहीं सर, दिस इज अनदर गोली। सर वो जो ऑर्डर्स हुए हैं कि पहले 3 ऑर्डर्स जो किए हैं वो तो कंप्लाई होंगे सर अलहदा, क्योंकि अपने सेक्रेटेरिएट से ना चेयरपर्सन साहब अपने सेक्रेटेरिएट से कहें कि SNGAD को और लेटर लिखें, ये रिपोर्ट, इनकी जो रिपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, देन विल मेक अ डिसीजन। पेंडिंग SNGAD में है ये, यही बनता है सर। सर ये तो SNGAD की रिपोर्ट पर डिपेंड करता है ना, वो ये लिख के हम लोग लिखेंगे SNGAD को कि मैं रिपोर्ट। सर SNGAD ने ऑलरेडी इंक्वायरी करवा ली है, आप कह रहे थे ना कि भी वो उन्होंने हमें कहा था कि अप्रूव करके आपने करके भेज दिए ना, और वो उनको रेगुलरली कॉल कर रहे हैं, जवाब देना है। सर रियलिस्टिक वैसे अगर टाइम फ्रेम नहीं देंगे तो फायदा नहीं होगा। पहले हमारी डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट कराने के जिम्मेदार हैं, इन्होंने क्या किया इस पे जी? सर हमने तो GAD तक पहुंचा दी है, अब GAD को आप रिमाइंडर सब काइंडली कर दें कि वो तो 30 डेज या 60 डेज का टाइम सर कमेटी जितना टाइम सजेस्ट करती है बता दें जी। सो व्हाटएवर मिनिमम पॉसिबल टाइम जो होना चाहिए लॉजिकली फाइनेंस।
سر یہ میرا نہیں خیال کہ SNG جو ہے فار ایگزامپل جیسے کہ پچھلے پیرا میں ہم نے کہا تھا کہ اس میٹنگ کے اینڈ ہونے تک کریں، تو آئی تھنک اس میں زیادہ ٹائم نیکسٹ میٹنگ تک ان کو کم از کم ٹائم دینا چاہیے. سر 30 days دے دیجیے میرے کو نیکسٹ میٹنگ تک. سر یہ کس کی ڈیسیجن ہے؟ یہ آپ کی ڈیسیجن ہے SNGADA کی ہے؟ سر یہ ڈپارٹمنٹ کو SNGADA نے ریکویسٹ کی تھی ڈپارٹمنٹ کو آپ اپروو کر دیں. تو یہ آپ لوگوں کی ہمارا اپروو ہے. This was probe done on the directions of SNGADA اور ان کو فارورڈ کر دے گی تاکہ وہ اپنی انکوائری کمپلیٹ کر لیں. یہ انٹرنل ڈپارٹمنٹ کی انہوں نے پروب کر کے کیا. نیکسٹ میٹنگ اس کو ڈائریکشن کر دیتے ہیں جی تاکہ نیکسٹ میٹنگ تک وہ اپنی رپورٹ بھیج دیں. نیکسٹ میٹنگ جی جو اگلی ہماری نیکسٹ میٹنگ ہونی اس وقت تک. ٹھیک ہے جی نیکسٹ پہ آئیں جی اگلا. Sir, next para overpayment due to non-deducting of GST from vendors. Page 21 page. 2.729 million. یہ سر جو اماؤنٹ ہے یہ ہماری ہم نے پروب کی تھی سر اس کو ڈپارٹمنٹل پروب اس پہ کنڈکٹ کی سر ایڈیشنل سیکرٹری ہمارے ورٹیکل پروگرام نے اور اس کے نتیجے میں سر جو ہے یہ اماؤنٹ جمع کروا دی گئی ہے سر جو ریکوائرڈ تھی. کیا ہوا جی؟ سر کمیٹی نے جو ہے اس میں کہا ہے کہ سنس دا اماؤنٹ آف روپیز 1.437 million has been deposited in the government treasury on the account 6 health recoveries through SAP, the probe committee recommends the subject para may be settled, may be dropped. یہ سر میرے پاس میں نے رپورٹ بعد میں آئی تھی تو میں نہیں ہے سر ادھر نہیں لکھا سر اس ٹائم نہیں تھی. یہ ریکوری 2.729 ملین کی تھی. 1.166 کا چلان بنا, یہ پیمنٹ ہو گئی. پروب کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ دیٹ واز کلیریکل مسٹیک. ایکچولی دا اماؤنٹ واز ناٹ 2.729 ملین بٹ اٹ واز 1.417 ملین. اگر 1.4 ہے تو یہ پھر آپ نے اس پہ 1.166 کیوں دیا ہوا جس کا چلان بنا ہے؟ 1.437 ہی ہے سر. نہیں, یہ جو آپ کا ہی لکھا ہوا ہے SDAC پری SDAC ڈیسیژن وہاں 1.166 ہے. واز سبمٹڈ ٹو DO چکوال. سر یہ بھی ہم نے آڈٹ کو جو ہم نے یہ بھی ویریفائی کروانی ہے رپورٹ اور ود دس تھنگ تو اس کو سر اس میں موسٹ آف جو پیراس ہیں اس میں جو ابھی پروگرس ہے سر یہ SDAC پہلے ہوئی سر, اس کے بعد یہ پروگرس آئی ہے. ابھی آرڈر نے اس کو دیکھا نہیں ہے اور یہ زیادہ تر پیراس جو ہیں وہ اسی طرح پروگرس میں ہی ہیں انٹل وی ویریفائی اٹ. میجورٹی آف دا پیراز اراؤنڈ 90% ان پروگرس. ہم اس کو ویریفائی کریں گے تو سر کمپلائنس اسٹیٹس آئے گا سر, کیونکہ یہ ساری SDAC کے بعد آئی ہیں. SDAC میں انہوں نے ایک ہی بیان تھا کہ پروگرس میں ہیں چیزیں. میرے خیال میں چیئرمین صاحب آج ایک غلطی ہوئی ہے. مطلب آڈٹ سے یہ چیزیں ویٹ ہی نہیں کرائی گئی, اس لیے آڈٹ اپنا کوئی ویو پوائنٹ نہیں دے پا رہا فائنل. یہ دیکھیں پھر وہی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے, کمیٹی کا کام پورا نہیں ہے, ویریفیکیشنز نہیں ہوئی ہوئی. وی ور ویری کلیئر ان دا لاسٹ میٹنگ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ آئی ہیو نوٹسڈ اینڈ آبزروڈ نان سیریس expressions without pointing at anyone in this committee. پھر آپ دیکھ لیں, مطلب اس میں آڈٹ سے لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی کہ آپ اپنا پورا اسکیجول شیئر کریں گے. جیسے میٹنگ نوٹس ایشو ہوگا یو ول شیئر دا اسکیجول آف یور ویریفیکیشنز ود دا ڈپارٹمنٹ ود ایوری ممبر آف دس کمیٹی, تاکہ اس ہاؤس اور فورم پہ آ کے دوبارہ یہ والی باتیں نہ ہو کہ جی ابھی پروب ہو گیا ہے, ان کو نہیں دکھایا, انہوں نے نہیں دیکھا.
سر ایسا ہے کہ ہم نے یہ شیئر کیا ہے سر، آپ کے ساتھ بھی کیا، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی، میرے پاس بھی ہے سر. یہ سارا اسکیجول تھا سر. ایس ٹی اے سی ہوئی اس وقت تک کوئی پروگرس نہیں تھی، چیزیں ابھی چل رہی تھیں. اس کے بعد یہ ساری خود ہی بتا رہے ہیں کہ آئی ہیں چیزیں ان کے ہاتھ میں. سر آپ پلان ہم کیسے ویریفائی کر لیتے ہر سر؟ مہینے کے آخری 10 دن میں میٹنگ ہوتی ہے. ہم اپنا ایجنڈا آپ کو بہت ویل ان ایڈوانس بھیج دیتے ہیں. سر اب آپ دیکھیں نا، ہم سارے اپنے حلقے چھوڑ کے، اپنے کام چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں. وی پے اے ویری ہیوج پرائز. وی آر ان اویلیبل ٹو آور کانسٹیچوئنٹس فار 4 straight days. اتنے لوگوں کی ایمرجنسی کام چھوڑ کے ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. آپ لوگ اس کا احساس کریں یار. اگر آپ لوگ نہیں کریں گے دین وی ول ہیو ٹو ایسکلیٹ اینڈ ٹیک دس میٹر ڈائریکٹلی ٹو اسلام آباد. سر میں پھر سر یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں سر، ایسا ہے کہ ہم نے بہت لیٹ ایس ٹی اے سی کی تاکہ ہمیں کچھ تو ویریفائی کرواتے. ڈیٹ ساری تھیں، ڈپارٹمنٹ خود ہی بتا رہا ہے کہ ایس ٹی اے سی کے بعد ان کو چیزیں یہ چیزیں نہ بتائیں آپ لوگ یہاں پہ کہ جی ابھی ویریفائی نہیں ہوا. نہیں ہوا تو نہیں ہوا، پھر اس کا مطلب ہے یو ور لیٹ، یو ہیو ناٹ ڈن یور ورک. This is how frustrated each and every one of us are feeling right now. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے کمیٹی کے ممبرز کا یہ خیال ہے کہ وی آر ٹو لینینٹ، اور ہمیں کمیٹی کی ریٹ انشور کرنے کے لیے ویل ہیو ٹو ٹیک ڈراسٹک اسٹیپس. 6 مہینے ہو گئے ہیں. آئی تھنک دیٹ گریس پیریڈ ہیز پاسڈ. لیٹس ناؤ کم ٹو ایکشن اینڈ ٹیک دس فورم سیریسلی پلیز. اور ہم نے آئی تھنک اپنا ٹائم بھی اوور شوٹ کر لیا ہے. یہ بریفس آپ کے ٹھیک نہیں ہیں جی. کل کمپلائنس کی میٹنگ چل رہی ہے. کائنڈلی یہ بریفس کو آپ کو زحمت کرنی پڑے گی. ان کی فارمیٹ چینج کر کے ان کو ایسی شیپ میں لے کے آئیں کہ کل ہم یہ ساری رپورٹس کلیئر کر سکیں. دس از یور رسپانسبلٹی. جی نارتھ کا کل کلیئر کرنا ہے ہم نے. نہیں چیئرمین صاحب، جب تک آڈٹ ویٹ ہی نہیں کر رہا ہے چیزوں کا آپس میں، ان کی ایک پیج پہ ہی نہیں ہے، تو کل تک کس طرح ایک پیج پہ ہوں گے؟ جو پیرا سیٹل کرنے والے ہیں وہ علیحدہ ایک لسٹ بنائیں. جن پیراز پہ پروب کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان کی علیحدہ ایک لسٹ بنائیں. جن پیراز پہ پی ایس سی کی ڈائریکشنز فالو نہیں ہوئیں ان کی ایک علیحدہ لسٹ بنائیں. یہ 3 بریفس آپ کل لے کے آئیں تاکہ کل کی میٹنگ میں ہم اس کام کو ختم کر سکیں. Our members have to attend a Chief Minister event at 5 p.m. so we cannot take this meeting any further. I apologize. کل کی میٹنگ میں ہم ڈپٹی کمشنرز کو آن لائن ہک اپ دے دیں گے جی. اور کل کی میٹنگ شارپ 2 p.m. اسٹارٹ ہو جائے گی. With that I thank you all.